this song mean? I don't know what it means. Was Okay, in this was in which language? I think must be in Ajay. I thought it was in Gurubani. Okay, I don't know. Okay, is it? Okay, okay, yeah, Juni, like something Huh? was. Yeah, Uh, and the lyrics have the words and the not meaning. उनका English में भी लिखा हुआ था how to yeah, pronounce it. yeah, And I had liked it because I had attended a session and I really loved the soothing tone of it. yes. Okay, and then after almost a year, I found it online, Mhm. and I just loved it. I have listened to it and I play it in my office also. Everyone listens to it. They have to. If I am playing something, they have to listen. Yeah, and I really like it. There's one more prana that I'll play tomorrow. And this one I really loved. And today, and I listened to it so much, but it was only today that I noticed what was written. The power for a radiant body. I was like, wow, health ka chapter. And I just played it today because I like it. I thought what to play, and I just played it Mhm. now. And today only I read it. That it is for bringing your power and a radiant body. I was like, wow, perfect for Yes, yes, health I chapter. also read it. I also Yes. read it, and I read the English words also. I really find if you want, I will share the link in the group. Okay. Okay. It just keeps on playing it for an hour, and the Mm. same thing in a very soft thing. And I had done a session where there was some meditation also, Okay. and they had just played it for I think a few minutes, and it was so awesome. And when you're quiet and relaxed with yourself, and then suddenly they starts playing. I don't know the meaning, but it was so soothing and it connected so well that I just fell in love with that. Okay, so if you want, I'll share it in the group. आप अच्छा लगता है, you can always play it. Yeah, and maybe you'll want to know the meaning of it and you'll find out. Yeah, you can do Yes. that. Yes, Yes. yeah. Okay. So tell me, how was your day? आज आपने कैसे अपने हेल्थ के बारे में पॉजिटिविटी में रहे? Did you think of some beliefs जो आपने बना के रखे हुए थे and you felt they are not okay? Let's get rid of them, make new beliefs. हाँ. Yes. बना के रखे हुए थे कई, बट Hmm. कल ही काफी समझ आ गई थी कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। Okay. एक्चुअली पहले वाला तो मैं भूल गई थी, फर्स्ट टाइम जो पावर किया था भूल गई। तो हाँ. अभी वही दोबारा से कर रहे तो अच्छा लग रहा है काफी। और Yeah. कल मैंने ध्यान दिया ये चीज। हाँ। Yes, actually, this power book is that awesome. Each time you read it, each time you attend a session, you see everyone has their own explanations. Yeah, I remember or I've noted a lot of things about what Ashmin ma'am had said, and plus while reading, while grasping other things, वो भी कुछ mixture हो जाता है. Plus you have your own life experience to share, so it's different. So many times you don't grasp it, but when you are reading or discussing, वो suddenly उसका कुछ एक न्यू चीज़ समझ में आ जाती है. So I think it's like plus एक remembrance भी देता है कब हमने किया था. Almost a year back या 7-8 months हो गए होंगे. हाँ ये। We forget. हम्म। Whatever we practice, only that we remember. Yes. So good. So आज आपने I'm sure आपने पानी के लिए ग्रैटिट्यूड, फूड के लिए ग्रैटिट्यूड और ज़्यादा किया होगा, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए किया होगा. हम्म। यस. एंड आपने क्या मिरर में देख के अपने आप को अप्रिशिएट किया? हम्म. नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा, अभी कर सकते हैं मन मन में. यू आर देयर ऑन कैमरा, आपको दिखाई दे रहे होंगे अपने आप, तो जस्ट Yes. डू इट कि यस. सुनते सुनते नहीं, बीच बीच में विनो तब कर लीजिएगा. या आप मिरर में अभी जब जाओगे आफ्टर द सेशन यू गो टू द लू और यू हैव अ मिरर इन योर रूम, उसको देख के आप बोलेगा आई एम सो थैंकफुल कि तुमने 1 घंटा सेशन किया, 1 घंटा तुम पॉजिटिविटी में रहे. यही बोल दीजिएगा, इतना अच्छे से आज तुमने घर में चिल किया, इट वॉज सो ऑसम, थैंक यू. बस ऐसे ही बोल दीजिएगा. Okay, so let's start with the warm up and then we'll start with the session. So, yes, unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. So, 1, 2, 3, and start. 10 little fingers, 10 little toes, Was 2 too little ears, little and 1 little nose. 10 little fingers, 10 was little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yeah. So, कल हमने पढ़ा, just 1 second. क्या कल हमने पढ़ा कि बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट होता है. दीज आर द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड. हम लोग समझ रहे हैं कि पावर हम लोग हेल्थ में कैसे अप्लाई करें, कैसे इस पावर से हम अपने हेल्थ के जो ब्रेकडाउन हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको चेंज करके हम अपनी ड्रीम हेल्थ पा सकें. वो हेल्थ जो हर बच्चे के पास होती है. हमको भगवान जी जब भेजते हैं फुल हेल्दी क्यूटी पाए, एकदम रोबस्ट, एकदम बहुत अच्छे से भेजते हैं, बट ओवर द ईयर्स बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ हम उसमें कुछ घोटाला करके अपना आज ही हाल कर लेते हैं. तो वो जो है उसमें बहुत बड़ा रोल बिलीफ के ऊपर होता है. बिलीफ मतलब जो सेम थॉट जो हम कई बार सोचते हैं, जिसको अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देते हैं, वो एक बिलीफ बन जाता है.
ओके। तो वो बिलीफ ही मेरी हेल्थ या रिलेशनशिप या मनी के एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तो अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हमारी क्या बिलीफ है? आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे मम्मी को डायबिटीज़ था तो मुझे भी होगा, दिस इज़ ऑल्सो अ बिलीफ। कल हमने जो डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और जो बुक के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे भी जो डीएनए स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो वो बिलीफ में बहुत स्ट्रांगली वो रोल प्ले करता है। हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, बट वो ही डिसाइड करता है, बिलीफ ही डिसाइड करता है कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ था तो आपको होगा कि नहीं। अगर आप ऐसा बिलीफ रखते हो तो बिल्कुल होगा, आप नहीं रखते हो तो नहीं होएगा। ओके। कई जन बोलते हैं नहीं जेनेटिक है, मैं तो वेट पुट ऑन होगा, ये मेरी पूरी फैमिली का ये ट्रेंड है। आई बिलीव इन इट सो इट विल हैपन विद मी। तो आप देखो आपने क्या ऐसे बिलीव बना के रखे हैं जो आपके लाइफ में हेल्थ को कम कर रहे हैं। सो वी हैव टू चेंज इट, ओके, बिकॉज बिलीफ इज नथिंग बट अ थॉट ऑन विच वी हैव गिवन लॉट्स ऑफ इमोशंस। ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा द वर्ल्ड इनसाइड आवर बॉडी। जैसे उन्होंने बोला कि इतने सारे सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स, वो सब पानी से बने हुए हैं, उन सराउंडेड भी पानी से हैं। तो हम जो भी फीलिंग्स या थॉट्स देते हैं वो उन फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करके वो वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। अच्छा, आपके मन में ये आया कि जब इतने सारे सेल्स हैं, हमारे बॉडी में खुद ही एक फार्मेसी है, तो क्यों ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं? किसी के मन में आया क्वेश्चन? एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही। सेकंड क्या होता है, आपको लगता है कि आप हर टाइम हेल्दी खाना खाते हो, ठीक से सोते हो, एकदम हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो जैसी हमको करनी चाहिए। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, जब हम थोड़ा सा ओवर ईट कर लेते हैं सपोज, तो वो जो सेल्स हैं, जो बॉडी की बाकी सेल्स हैं, वो वहाँ पे लगी हुई हैं। तो सडनली कोई इन्फेक्शन आता है तो वो एक काम में बिजी हैं। आप ऐसा सोचो, घर में गेस्ट आने के पहले अगर आपने खुद ही घर में आज सफाई कर रहे हो तो सारा हेल्प कहाँ लगा हुआ है? घर की सफाई क्लीनिंग में लगा हुआ है, राइट। सडनली गेस्ट आ जाते हैं तो उनको अटेंड करते करते तो तब तक बाकी लोगों को थोड़ा फ्री होना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा ही होता है, जब हम ओवर ईट कर लेते हैं, मे बी पिज्ज़ा खा लिया या नूडल्स खा लिया या समथिंग थोड़ा सा जो हमारे बॉडी के लिए उतना फेवरेबल नहीं होता, वी ऑल नो इट, या तब बॉडी की सेल्स उसमें लगी हुई हैं और सडनली कुछ इन्फेक्शन आ जाता है तो वो इसीलिए हमको पकड़ लेता है क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल्स का जो काम था उससे ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है और अभी वो जो हमने उनको एक्स्ट्रा काम पहले से दे के रखा हुआ है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा काम, उसको वो ठीक से टैकल ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसलिए वो इन्फेक्शन हमको हो जाता है। तो वी हैव टू पे अटेंशन ऑन व्हाट वी आर ईटिंग एंड अगेन ग्रैटिट्यूड के संग हमको उसको खाना है। देन पावर ऑफ योर हार्ट, कि हार्ट, अगर हमारे हार्ट से क्या है, हार्ट से हमारी सारी फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, राइट। तो जब हम फीलिंग्स हैप्पी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन करती हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर उनमें होता है, तो दे आर फंक्शनिंग परफेक्टली। जब हम कोई सैड, कोई भी बिलो द लाइन की फीलिंग में रहते हैं तब हमारे सेल्स ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, या बिकॉज उनमें वो सेल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचता है। देन वी ऑल्सो रेड दैट यू नो वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, या कि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है और हमारी बॉडी 70% वाटर है, ब्रेन 80% वाटर है, तो हमारे थॉट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वी आर द लीडर ऑफ द 100 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। तो आपको जो भी आपकी ड्रीम हेल्थ है, ओके, आप जब पानी पी रहे हो, आप कुछ खाना खा रहे हो, मेन इज़ वाटर, तो आपको उस पानी को ये इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, कि थैंक यू वाटर फॉर मेकिंग माई बॉडी फिट फाइन ऑफ 62 kgs, यू नो, जो भी आपका ड्रीम है आपको वो बोला है, मेरा ये इसलिए मैं सबको बता दे रही हूँ, ठीक है ठीक है। तो आपका जो ड्रीम है अपने हेल्थ के बारे में वो आपको बोलना है और पानी पीना है। तो वो आप सोचिए ना, आपके बॉडी में वो पानी जा रहा है, वो क्या कर रहा है, हर सेल के किनारे जा रहा है, वो न्यू सेल्स भी जो बन रही हैं उसमें वो जाके क्या इंस्ट्रक्शन देगा, हाँ, कि ये तुमको करना है कि इसकी बॉडी को ऐसा बनाना है। अगर आपने बिना कुछ किए पानी पी लिया, राइट, नॉर्मल जैसे अपन पीते आ रहे हैं, आपने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि बॉडी में जाके क्या करना है, वो क्या करेंगी, जो पहले के काम हो रहे थे वही करेंगी, या कुछ भी ऐसा लेजीपन होके कुछ भी कर रहे होंगे वो लोग, राइट। तो व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, आपके घर में जैसे लाइक वी वर डिस्कसिंग ना, कि पालक आया है तो आप बताओगे ही नहीं मेड को क्या करना है, तो वो क्या बनाएगी उसका। सेकेंडली, आपके बॉडी में जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, है ना, टुडे आई थिंक वी आर गोइंग टू कवर दैट। जो न्यू सेल्स बनते हैं, माने आपने घर में किसी न्यू स्टाफ को आपने एम्प्लॉय किया, तो आप उसको कुछ तो एक इंस्ट्रक्शन दोगे ना, कि तुम घर में आके तुमको क्लीनिंग करनी है, तुम्हारा डिपार्टमेंट आयरनिंग का है, या तुमको कुकिंग करना है। अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दोगे तो वो घर में आके क्या करेगा। अगर आपका पहले का कुक
घी में बनाता था, सपोज अब आपको लगता नहीं मेरे को मस्टर्ड ऑयल में बनवाना है, तो न्यू कुक को तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना, वरना तो जो उसको आता होगा वो वही बनाएगा, या आपके पहले वाले कुक का काम देख के वैसा ही बनाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी इंस्ट्रक्ट व्हेन वी आर ईटिंग फूड, बिकॉज वो ही फूड हमारे बॉडी में जाके न्यू न्यू सेल्स बन रहे हैं, है ना. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, उसी से बनी हुई है. सो व्हेन वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग वाटर, वी हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड एंड वी हैव टू इंस्ट्रक्ट कि ये खाना, ये पानी हमारे बॉडी में जाके इसको करना क्या है. ओके, सो नाउ वी हैव टू रीड हाउ टू यूज द पावर ऑफ लव फॉर परफेक्ट हेल्थ. Di, I have a question. यस सोनिया जी. Yeah. Suppose if I am feeling any kind of issue in my body right now, or means since few days, then with हाँ. my gratitude and my belief, I can cure it, or I shall also go and consult a doctor. देखिए ऐसे तो आप कर सकते हो, अगेन इट डिपेंड्स वो किस टाइप का है. अगर आपको 100% थोड़ा सा विश्वास eyes है, में, हाँ 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 हाँ. ठीक है, तो आप Okay, कर okay. सकते हो. हाँ, बट अगर आपको Okay. लगता है अरे मैं पूछ लूँ तो अच्छा रहेगा, या किसी ने बोल दिया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम लोग अगर न्यू प्रैक्टिस में हैं, सो वी डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग आर बिलीव्स आर. ओके, हाउ मच ग्रैटिट्यूड इज पेंडिंग इन द एरिया ऑफ माई हेल्थ, हमको नहीं पता. Okay. तो इट इज़ बेटर, आपको लगता है कि अगर कुछ नॉर्मल सा चीज़ है तो वो 100% ठीक हो जाएगा. इफ़ यू फील नहीं, इट इज़ बेटर टू कंसल्ट, आप कंसल्ट कर लो. बट Means फिर भी like वो I'm जो having some, I feel in clarity in my eyesight little bit nowadays. So ओके, तो सीक्रेट बुक में था कि रॉन्डाबन ने कैसे अपने स्पेक्स लगा लिए थे, सुन सुन के कि इतने एज में सबको स्पेक्स लग जाते हैं, और फिर धीरे से उन्होंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके हटा भी दिए थे. सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग तो आप बिल्कुल करिए. अदरवाइज आप अपने जस्ट ऐसा कुछ लग रहा है ऐसे ही झूठ मूठ, तो बस कुछ नहीं, आप थोड़ा सा अच्छे से सोइए, ग्रैटिट्यूड करिए, एंड आई एम श्योर इट विल बी फाइन. वही बिलीफ इज कमिंग समवेयर कि वो हाँ हो सकता है, एज है ये, मतलब दैट बिलीफ इज आल्सो कमिंग, दैट इज आल्सो ट्रू. ओके दी, थैंक यू. ठीक है, यू ट्राई इट ना. आई थिंक आप थोड़े दिन ट्राई करके देखो, योर आइज विल बी परफेक्टली फाइन. और यही सोचो, पूरा यही अफर्म करो, आई एम रीडिंग परफेक्टली क्लियरली. ठीक है, Like from yesterday I am doing, I have my नॉर्मली perfect, नेचुरली. yes, हाँ, yesterday I heard na the line I read, I have perfect eyesight, so that eyesight, is means yeah. I am loving this line, so that is what I am using from yesterday. ठीक है. एंड Thank जब आप you. पानी पी रहे हो, ये बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी परफेक्ट आई साइट. ओके, whenever you are doing anything, आप अपने आंखों को इतना रोज ग्रैटिट्यूड दो कि बस वाओ, तुमने I am मुझे इतने doing. अच्छे हॉलीडेज में इतने अच्छे सीन दिखाए हैं, बच्चों की स्माइल्स, ये वो माने अच्छी अच्छी चीज़ें याद करके आप और ग्रैटिट्यूड करो. यस, या ओके, Thank थैंक यू. you. या सो हु इज रीडिंग टुडे? ओके, यस पल्लवी जी, आप पढ़ सकते हो. यस, या Shall I start? या प्लीज. How to use the power of love for perfect health. Where there is a greatest love, there are always miracles. Villa कैथर, Cather, पुलित्जर प्राइज. Pulitzer Prize winning novelist. या तो वो हिंदी में कह रहे हैं, जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इंग्लिश में हम सब ने ये पढ़ा है एडजेक्टिव्स, है ना. एडजेक्टिव्स हम सब ने पढ़े हैं, विशेषण जिसको आप हिंदी में बोलते हो, राइट. हमने पावर वर्ड्स भी जो यूज़ किए थे वो सारे एडजेक्टिव्स थे. तो उसमें हमेशा ना 3 डिग्री होती थी, है ना. कंपैरेटिव, नहीं हम भूल गए, देखिए लास्ट वाले क्या है, सुपर. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. यस यस, गुड गुड, थैंक यू. या तो देखिए, मेरे को क्या लगता है ना, जिसके किड्स होते हैं ना, उसका स्कूल वापस से रिवीजन हो जाता है. मेरे तो कोई किड्स है नहीं, इसलिए मेरा ना ये रिवीजन अभी छूट गया. आई सी ऑल माई फ्रेंड्स, या उनका सब पूरा रिवीजन हो गया है. ऐसे स्कूल में तुमने तो इतना बोली, हाँ सच्ची में स्कूल में इतना खुद पढ़ा होता ना, तो पता नहीं आज क्या कर रहे होते. अब सब पढ़ना पड़ रहा है दोबारा, जो नहीं समझ में आ रहा था वो भी समझना पड़ रहा है. आई वॉज लाइक यस गुड, तुम लोग लकी हो, पूरा रिवीजन हो जा रहा है स्कूल का. या सो पॉजिटिव, सुपरलेटिव, नहीं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. यस, तो सुपरलेटिव, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वेयर देयर इज द ग्रेटेस्ट लव देयर आर ऑलवेज मिरेकल्स. माने अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा सा लव दिया, हाँ थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रहे, मतलब जो उन्होंने बोला है 51% पॉजिटिविटी में रहे तो काम चल जाएगा. चल जाएगा, चमत्कार होंगे? नहीं होंगे. योर लव, योर ग्रैटिट्यूड हैज़ टू बी इन द मोस्ट पॉजिटिव फॉर्मेट, इन द सुपरलेटिव फॉर्मेट, तब जाके मिरेकल्स होंगे. माने वो कह रही देयर आर ऑलवेज मिरेकल्स. तो क्या करना है आपको? अच्छा, ये उन्होंने देखिए हेल्थ के बारे में नहीं कहा है,
हर एरिया में आप इसको अप्लाई करोगे। अगर आपको मनी के एरिया में मिरेकल्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी सैलरी इतनी हो जाए, आपकी इनकम इतनी हो जाए, आपकी सेल इतनी हो जाए, तो आपको ग्रेटेस्ट लव देना है। ग्रेटेस्ट लव माने क्या हुआ कि क्या आप 60% टाइम पॉजिटिव रहोगे कि 24 आवर्स पॉजिटिव रहोगे? बताइए, आपको ये चूज़ करना है। आपको किस टाइप के मिरेकल्स चाहिए? छोटे मोटे कभी कभार मिरेकल्स चाहिए तो आप 60% में अटक जाओ, तो छोटे छोटे होते रहेंगे। और दूसरा, हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम 60 टारगेट करते हैं तब जाके अपन 50-51 पे लैंड करेंगे। तो जब आप टारगेट 24 आवर्स का करोगे, ठीक है, तब जाके कहीं आपका 70-80% होएगा, तब जाके मिरेकल्स होंगे रेगुलरली। सो आप देखो आपको क्या चाहिए। लाइक टुडे आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, ऐसे संडे है, कहीं नहीं जाना है, घर पे चिल करना है, बट फिर भी कभी कभी वो कुछ थॉट्स आ ही जाते हैं। यू हैव टू बी ऑन योर टोज, है ना, कि जैसे बोलते हैं ना, आंखें हटी दुर्घटना घटी टाइप्स, दुर्घटना घटी नहीं बोलना चाहिए, बट तुरंत हम बिलो द लाइन जा सकते हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू टेक अ कॉन्शियस चॉइस कि हाँ, मेरे को पॉजिटिविटी में ही रहना है, मेरे को पॉजिटिव बातें ही करनी है। देखिए, हम लोग ट्राई करेंगे तब जाके होगा, बट आप एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। व्हेन आई हैड स्टार्टेड दीज मैजिक बुक प्रैक्टिसेस एंड पावर बुक प्रैक्टिसेस, तो मेरे को लगता था कैसे होगा, बोलेंगे कैसे, साइट में कैसे डांटेंगे कि मुझे क्या काम चाहिए, मिस्त्री को समझाएंगे कैसे, क्लाइंट को हर बात में हाँ करना पड़ेगा हमको। आई यूज टू थिंक लाइक दिस, बट ग्रेजुअली कुछ पिक होते होते आपका वो नेचर बनने लगता है। आई एम नॉट सेइंग मेरा बन गया है, बट इट इज़ ईजी। उतना नहीं है, उतना टफ नहीं है जितना पहले लगता था मेरे को। 2.5 years अगो पहले मेरे को ऐसे ही लगता था, अरे बात क्या करेंगे, किसी से बात नहीं कर सकते, गॉसिप नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, कुछ बोल ही नहीं सकते, ना मौसम के बारे में, ना नेता के बारे में, कुछ नहीं बात कर सकते। मूवी भी गंदी लग रही तो भी नहीं बोल सकते। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग। देन आई अंडरस्टूड टिपिंग पॉइंट या पावर बुक में कि हाँ 51% टाइम तक चलेगा। बट अब इन्होंने बोला है वेयर देयर इज द ग्रेटेस्ट लव देयर आर ऑलवेज मिरेकल्स। तो इट इज़ ऑन यू कि इफ़ यू आर डूइंग लिटिल ग्रैटिट्यूड, इफ़ यू आर डूइंग लिटिल पॉजिटिविटी, योर लाइफ विल चेंज लिटिल। सो वॉट डू यू वॉन्ट? यू वॉन्ट लिटिल मैजिक्स or you want more and more magics? So that is what you have to do, and it is applicable in all the areas of our life. Yeah. The health you want and love, you must give love. In the face of any sickness, give good feelings about health, because only love brings perfect health. You cannot give bad feelings about sickness and receive health. If you Sorry. If you hate or fear a disease, you will be giving out bad feelings, and disease can never go away through bad feelings. When you give thought and feelings of what you want, your cells receive the full force of health. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cells reduces. It doesn't matter if you feel bad about a subject that has nothing to do with your health. When you feel bad, you reduce the force of health to your body. But when you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend or promotion, your body receives the full force of health. तो अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि अगर हमको वो हेल्थ चाहिए जो हमको चाहिए, ठीक है, माने आप चाहते हो फिट बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, हेल्दियर लिवर, हेल्दियर स्टमक, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, स्किन अच्छी चाहिए आपको मोर अच्छी आई साइट चाहिए, जो भी चाहिए, तो शी इज़ टेलिंग अस फर्स्ट वी हैव टू गिव लव। ओके, जब तक हम गुड फीलिंग्स नहीं रखेंगे अपने हेल्थ के बारे में और अपनी बॉडी को लव नहीं देंगे, तब तक वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। शी इज़ टेलिंग अस जब भी हम अपने बॉडी में अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले द वाटर इन माई ब्रेन इज गेटिंग अफेक्टेड। देयर इज 80% वाटर, और वो ब्लड ऐसा तो है नहीं 80% वहाँ टंकी में ऊपर जमा हुआ है, इट इज़ फ्लोइंग इन द बॉडी, राइट, इट इज़ ऑल द टाइम फ्लोइंग इन द बॉडी। जमा रहता तो ठीक है, कहीं चला जाता, बट अभी क्या है, ये जो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो वाटर एक एक सेल को ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। कौन सी? दैट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट माई आईज, दैट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट माई हेयर, वो सबको ये बात कर रहा है। तो वो जैसे बात बता रहा है सबको, सारी सेल्स वैसे ही काम करने लगती हैं। वाई? बिकॉज आई एम द कमांडर ऑफ माई 100 ट्रिलियन सेल्स। या अब क्या होगा, वो अगर हम अच्छे थॉट्स रखेंगे तो सारी सेल्स, उस आपने देखा वाले वीडियो में कि कैसे वो सेल्स कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा था, यस, तो हर सेल को उसी टाइप की पॉजिटिव बातें मिल रही हैं और वो सेल वैसे ही काम कर रही है। शी इज टेलिंग अस द फोर्स ऑफ हेल्थ
माने फुल फोर्स मिलता है. ओके, एंड व्हेन वी आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, अबाउट आवर हेल्थ और अबाउट द नेचर, अबाउट योर फ्रेंड, अबाउट योर मनी, अबाउट योर बॉस, अबाउट द मूवी, अबाउट द वेदर, अबाउट द क्यू, किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपन नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, ओके, देन द फोर्स ऑफ लाइफ रिड्यूसेस इन द सेल. तो क्या हो रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है कि मेरे को बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया और किसकी आपके साथ हुआ ही होगा ऐसा ना, कुछ हुआ और आपको गैस बन गई, कितना सर में आपको टेंशन हुआ कि यू गॉट अ हेडेक एंड यू गॉट एसिडिटी. वी हैव फेस्ड ऑल दिस. सो व्हाट इज हैपनिंग, आपने हेल्थ के बारे में तो कुछ नहीं कहा था, बट आपके मन में एक बिलो द लाइन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी, उससे आपकी बॉडी में असर आया, राइट. तो ये क्यों हुआ, बिकॉज द सेल्स वर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, बिकॉज द वाटर इन द सेल्स वॉज गेटिंग अफेक्टेड. तो शी इज टेलिंग अस, चाहे कैसे भी हो, if I am feeling bad, then I am reducing the health in my body, so I have to feel good no matter what. Okay, she is telling us you can feel love for anything. कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप तुरंत हॉलीडे की फोटोग्राफ देखने लगो. हाँ, ऐसा होता है ना कि लाइक वी इफ वी आर इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स, तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है जो भी हमारे हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग नाइसर. तो बिल्कुल यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में लव, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, योर बॉडी रिसीव्स द फुल फोर्स ऑफ हेल्थ. तो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा लगा कि अरे पेट में कुछ हो रहा है, क्रैम्प आ रहे हैं, सर दुख रहा है, कुछ भी है, स्टार्ट गिविंग लव, स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग विच यू आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट. यस, नाउ शी इज टेलिंग अस अबाउट ग्रैटिट्यूड. लेट्स सी. Gratitude is the great multiplier. So say thank you for your health every single day. All the money in the world cannot buy health because it is a gift from a life. And so, more than anything else, be grateful for your health. It's the best health insurance you can ever take because gratitude is the assurance of health. या तो ये सब आपने बहुत अच्छे से मैजिक बुक में किया है. हेल्थ के हमने 3 चैप्टर वहाँ किए थे कि पास्ट के हेल्थ का ग्रैटिट्यूड किया आपने, प्रेजेंट में जो आपके अभी हेल्थ अच्छी चल रही उसका ग्रैटिट्यूड किया, और फ्यूचर में जो हमको हेल्थ चाहिए उसके लिए भी हमको ग्रैटिट्यूड करना है. यू रिमेंबर ऑल दीज प्रैक्टिसेस कि बचपन से आपकी बॉडी ने आपका कितना साथ दिया है, इतना आपको सपोर्ट किया है. यू कुड रन अराउंड, यू कैन स्विम, यू कुड जंप, आप रात रात भर मस्ती करते थे फ्रेंड्स के संग में. तो आपको उस अपने बॉडी पार्ट्स के लिए आपको थैंक यू करना है. अभी भी आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो आप अपने हेल्थ के कारण एंजॉय कर पा रहे हो, यू कैन रीड, यू कैन सिट, यू कैन फील, यू कैन हियर एवरीथिंग. तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है. शी इज टेलिंग अस ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय हेल्थ, है ना. हमने ये देखा है, वो वाला पर्सन था ना, अगेन आई थिंक मेरे को ना ये बिलीफ मिटाना होगा कि बादाम नहीं खा रहे हैं तो मेमोरी स्ट्रांग नहीं हो रही. ठीक है. या सो व्हाट वाज दैट गाइज नेम, अब ठीक है, अब याद नहीं है मेरे को. हु वाज लाइक अ ग्रेट इन्वेंटर, हाउ इज इट पॉसिबल, हर बार मेरे को मैजिक बुक में उसका नाम याद आता है. टेल्सा. नहीं, नॉट टेस्ला. वो पर्सन जो स्टीफन हॉकिंस, देखिए याद आ गया, स्टीफन हॉकिंस. या ही इज अ वंडरफुल, मैंने उसने इतना कुछ इन्वेंट किया है, बुक्स लिखी हैं, एंड या सो मच मनी. ओके, बट ही कैन नॉट वॉक. आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग इफ ही इज अलाइव और नॉट नाउ. एंड ही वाज ऑन अ चेयर. आपने देखा होगा, ही कुड जस्ट, वो अपने माने जस्ट ही कुड मूव हिज आईज, और वो माउथ से कुछ इसको पकड़ के अपने चेयर को भी रोटेट करता था. ओके, जैसे ऋतिक रोशन उस मूवी में हो गया था, उसकी हेल्थ में जो ब्रेक डाउन हुआ था ना, देयर वाज दिस मूवी गुजारिश, वैसे हो गया. एंड दैट गाय वाज सुपर रिच, स्टीफन हॉकिंस. तो वो यही कह रही है कि ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय हेल्थ. हमने ये लॉकडाउन के टाइम पे देखा है, सबके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन जो लोग जिनको जाना था वो चले ही गए. मनी कुड नॉट सेव देम. या तो शी इज टेलिंग अस, एक्चुअल में ये जो लाइफ हमको मिली हुई, ये जो हेल्थ हमको मिली हुई है, वी शुड बी सुपर सुपर ग्रेटफुल टू द सुप्रीम पावर फॉर दिस अमेजिंग लाइफ एंड द हेल्थी बॉडी दैट वी हैव. आज हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए बोलते हैं, अरे मेरी नोज़ ऐसी नहीं है, मेरी हाइट ऐसी नहीं है, मेरे बाल स्ट्रेट होते, मेरे बाल कर्ली होते, बट वी आर फॉरगेटिंग द मेजर गिफ्ट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम गॉड, दैट वी आर ब्लेस्ड. हमारी जो हेल्थ में हमको भगवान जी ने जो गिफ्ट दिए हुए हैं, वो कितने लोगों के पास नहीं है. वी आर सो ब्लेस्ड, हम लोग उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं. तो शी इज़ टेलिंग अस, व्हेन वी आर ग्रेटफुल, एवरी डे वी शुड बी ग्रेटफुल, है ना. तो जितने बार आप ग्रैटिट्यूड करोगे, यू आर इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ हेल्थ इन योर लाइफ एवरी डे. So that is why gratitude is very very important, and she is telling us it is a great multiplier and it is also ensuring कि हमारे लाइफ में आगे हमेशा गुड हेल्थ बनी रहे. Okay, so let's continue.
Be grateful for your body instead of finding fault with it. Every time you have a thought of something you don't like about your body, remember that the water inside your body is receiving your feelings. Instead, say thank you with all your heart for what you do like about your body and ignore the things you don't like. या तो क्या करना है आपको, आपको जितने बार याद आए कि अरे मेरी तो ना स्किन ऐसी हो रही है, अरे मेरे स्टमक में ये हो रहा है, अरे मेरा तो वेट ऐसा है, अरे मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, मेरे घुटने में दर्द है, या बैक में पेन है, जो भी इस टाइप की आप बातें कर रहे हो, ओके, तो आपको याद रखना है कि आपके बॉडी में जो 70% वाटर है वो सुन रहा है, और वो इतनी सारी सेल्स को यही कमांड देगा कि यही करो. You don't want that. You want to improve your health. You want to be a fit, healthy, happy body. Yeah? तो क्या करना है हमको? She's telling us instead say thank you about what you like. अगर आपको अपने लगता है कि आपको हेयर आपको थिक करने हैं, हाँ, तो आपकी स्माइल अच्छी है, आपसे वाओ आई हैव सच अ लवली स्माइल, थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी दिस स्माइल, आप ये बोलो. आपको लगता है कि आपकी वेस्ट बहुत अच्छी है, आपकी फिंगर्स बहुत अच्छी हैं, आपके नेल्स बहुत अच्छे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर सो अमेजिंग इन योर बॉडी, है ना, वो अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल करना स्टार्ट हो. एंड शी इज टेलिंग एंड इग्नोर द थिंग्स यू डोंट लाइक. शी इज टेलिंग, वो ये नहीं कह रही कि उस पार्ट को भूल जाओ, वो कह रही है जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती है, मतलब मे बी माई, हम अपने बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, मैंने सपोज किसी को अपने नी का पेन नहीं अच्छा लगता है, बट नी तो अच्छी लगती है ना, तो शी इज टेलिंग अस पेन को भूल जाओ, इग्नोर द पेन एंड फोकस ऑन वॉट यू लाइक अबाउट योर बॉडी. इट कैन बी एनी अदर पार्ट, बट उस पर ध्यान देना हमको. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Love draws forth love, Saint Teresa of Avila, हाँ, या nun, mystic and writer. या तो सेंट टेरेसा हमसे कह रही हैं प्रेम प्रेम को खींचता है. अभी रोंडा बर्न हमसे कह रही हैं कि अगर हम अपने उस बॉडी पार्ट में जो ब्रेकडाउन है उसको भूल के किसी और चीज़ को अप्रिशिएट करें तो क्या होएगा. शी इज टेलिंग अस लव ड्रॉज फोर्थ लव. माने जैसे देखिए टीचर क्या करती हैं, क्लास में किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको प्रेज करती है ना, राइट, वाओ ब्रिलियंट, बहुत अच्छा आंसर दिया. तो डू यू थिंक द अदर चिल्ड्रन गेट मोटिवेटेड कि यस आई ऑल्सो वॉन्ट एन अप्रूवल फ्रॉम द टीचर, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट प्रेज कि टीचर प्रेज करे मेरे को भी इस क्लास में सबके सामने, ऐसे ही होता है ना. तो क्या हो रहा है, वो टीचर ने उस बच्चे को प्रेज किया, बाकी जन मोटिवेट होते हैं अपना होमवर्क अच्छा करके लाने में या मे बी प्रोजेक्ट अच्छा करने के लिए, सो दैट दे ऑल्सो गेट अ प्रेज. या वैसे ही वो कह रही है लव ड्रॉज फोर्थ लव, माने आपने अपने कोई दूसरे बॉडी पार्ट के बारे में प्रेज किया, ग्रैटिट्यूड किया, तो बाकी बॉडी पार्ट भी चाहेंगे कि अरे जल्दी से हम भी ठीक हो जाते हैं, मैं तो अच्छा से नहीं फंक्शन कर रहा हूँ, फिर भी देखो वो तो मेरे को कुछ नहीं बोल रही, मेरे को एकदम नहीं डांट रही है, कुछ भी मेरे बारे में नेगेटिव नहीं बोल रही है, तो लेट मी हील फास्टर. दैट इज हाउ द सेल्स वर्क इन द बॉडी. ओके, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट. माने हम जिसको ध्यान दे रहे हैं, जिस पे एनर्जी दे रहे हैं, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है. तो आप जो बॉडी पार्ट ठीक नहीं है आप उसका ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, मतलब आप उसको अप्रिशिएट करो. एंड शी इज टेलिंग अस अगर आप उसका अप्रिसिएशन नहीं कर पा रहे हो तो कोई दूसरे बॉडी पार्ट को आप अप्रिशिएट करना शुरू कर दो. ओके, एंड व्हाट विल हैपन, दैट बॉडी पार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट हीलिंग फास्टर एंड फास्टर. यस. Before you eat food or drink water, look at what you are about to eat or drink and feel love and gratitude. Make sure your conversations are positive when you are sitting down to meal. Yes, continue the next para please. Blessing food gives love and gratitude for a food. As you bless food, you change the structure of the water in the food and its effect on your body. Blessing water with a love and gratitude does the same thing. Your positive feeling of love can change the structure of water in everything. So use the power. या तो ये कल आपने उस एक्सपेरिमेंट में देख लिया डॉक्टर मसारो इमोटो के एक्सपेरिमेंट में कि कैसे पानी का स्ट्रक्चर थॉट्स और फीलिंग से चेंज हो जाता है. तो रोंडा बर्न हमसे कह रही है कि अगर आप अभी अपना खाना खाते टाइम या टीवी देखते टाइम आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, या कुछ नहीं तो पूरी फैमिली मिल के सास बहू के सीरियल देख रही है, या न्यूज़ देख रही है, या टर्की की न्यूज़ देख रही है, या कुछ भी न्यूज़ देख रही है जो आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रही है, तो शी इज़ टेलिंग अस मेक श्योर योर कन्वर्सेशंस आर पॉजिटिव व्हेन यू आर सिटिंग डाउन. ठीक है, माने क्या करना है आपको, चुपचाप बैठ के खाना खाना है ना. अगर आप अपने घर में ऐसा स्टार्ट करो, यू विल सी
योर सबकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होने लगेगा। ओके अगर आप दूसरों को नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो एटलीस्ट खुद आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा दैट यू आर ईटिंग क्वाइटली, or if you are talking then it has to be something positive and appreciative. She is telling us blessing food gives love and gratitude for food. ठीक है, माने आपको क्या करना है, खाने के पहले आपको खाने को ब्लेस करना है। आपने देखा होगा आपके घर में कई एल्डर्स ऐसा करते होंगे कि पानी से वो ऐसे अर्घ दे के खाना खाते हैं या थाली को ऐसे जय करके खाना खाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ब्लेसिंग फूड एंड दे आर गिविंग जब उसमें आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो तो खाने का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। खाना मतलब खाने में जो पानी है, राइट, एवरीथिंग हैज वाटर इन इट, तो उसमें जो पानी का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगता है और वो खाना जब अपन खाते हैं तो हमारे बॉडी को वो अफेक्ट करता है। आप सोचो हम लोग बाजार से जो सामान लेके आते हैं, राइट, इट कुड बी अ स्वीट, इट कुड बी अ पिज्जा, इट कुड बी एनीथिंग, तो कितने बार होता है आप वो लेके आ रहे हो बट समवन इन द जो वहाँ पे दे रहा था आपको, मे बी उसको लगता था कि अरे मुझे खाना था ये, या ये इतना टेस्टी है एंड आई कुड नॉट अफोर्ड इट। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स होती हैं वो भी पानी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं इन द फूड दैट यू आर बाइंग। तो क्या होगा, आप जब उसको ब्लेस करोगे या पानी से आपने उसकी नज़र उतारी सपोज, राइट, तो क्या हुआ, आपने उस खाने को भी सैनिटाइज कर दिया, आपने उस खाने को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और फिर जब उसको आप खाओगे तो आप देखोगे कि आपके बॉडी में वो पॉजिटिव चीज़ें ही करेगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर ईटिंग यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर ईटिंग, कि किसने वो खाना बनाया है, किसने उसका पेमेंट किया है, ठीक है, किस फार्मर ने उसको ग्रो किया है, कौन लेके आया है, किस शॉप से आप लेके आए हो। आप सबको ब्लेसिंग करते करते जब आप खाओगे यू विल सी यू आर फीलिंग लाइटर एंड हैप्पियर एंड दैट फूड विल ऑल्सो डू द राइट थिंग इन योर बॉडी। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप यही बोलो, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हेल्दी। आप वो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आप बस इतना सही बोलो, ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड आफ्टर यू हैव योर फूड एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग यस योर सिस्टम इज डूइंग बेटर एंड बेटर। Yeah, so she is telling us your positive feelings of love can change the structure of water in everything, so use the power. कैसा पावर, जो हमारे पास है, the power of love and this power for healing our body. Okay, तो आपको सब ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, yeah, let's read then we'll discuss. You can give love and gratitude and use their power while receiving any medical treatment. If you can imagine being well, you can feel being well, and if you can feel it, you can receive it. To see your health improve, all you have to do is give love more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. तो अगेन हम लोग ने टिपिंग पॉइंट के बारे में बात की है और टॉपिक के पहले रॉन्डा वन ने क्या किसका कोट दिया है, ग्रेटेस्ट लव। जब अपन ग्रेटेस्ट लव देंगे तभी मिरेकल्स होंगे लाइफ में, ठीक है। तो वो कह रही हैं अगर हम कोई भी नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी जगह पे जा रहे हैं तब अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड यूज देयर पावर। माने लव एंड ग्रैटिट्यूड का पावर अपन यूज़ कर सकते हैं जब अपन कोई दवाई ले रहे हो, मे बी आप कोई ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय भी अगर हम लव एंड ग्रैटिट्यूड के फीलिंग में रहेंगे तो हमारे लिए वो और ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। कैसे यूज़ करना है हमको, शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू कैन इमेजिन बीइंग वेल, बिकॉज इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस्टरडे और टुडे ओनली आई हर्ड और रेड समथिंग, उसमें बोला था कोई भी आई रोट इट, या एम्ब्रेस इमोशन अहेड ऑफ द इवेंट। माने क्या करना है, इवेंट के पहले जो आपकी फीलिंग आनी है उसको हमको अभी एम्ब्रेस कर लेना है, माने अभी उसको अपना लेना है। तो हम लोग विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन में यही करते हैं, अभी वो शादी हुई नहीं है लेकिन उसका एक्साइटमेंट, उसकी खुशी हम अभी फील कर रहे हैं, या अभी वो बच्चों के प्रमोशन हुए नहीं है बट अभी से आप उसका सैलरी का और इंक्रीमेंट का आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ यू कैन इमेजिन बीइंग वेल एंड यू कैन फील बीइंग वेल, माने आपने क्या किया, उस इमोशन को आपने अभी से फील करना स्टार्ट कर दिया। एंड इफ़ यू कैन फील इट यू कैन रिसीव इट, माने अगर हम उस इमोशन को अभी फील कर सकते हैं तभी हमको वो मिल सकता है। तो शी इज़ टेलिंग अस टू सी योर हेल्थ इम्प्रूव ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव लव मोर देन 50% ऑफ द टाइम। माने सिर्फ हेल्थ में नहीं, आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है और अगर आप हेल्थ में मिरेकल चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको हेल्थ में ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना होगा। एंड जस्ट 51% में हमको नहीं अटकना है। आपको ज़्यादा हेल्थ में अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपका टारगेट 70-80% होना चाहिए। 24 आवर्स अगर आप पॉजिटिविटी में रह सकते हो तो बेस्ट है। ओके,
सो लेट्स रीड एंड मेक इट अ पॉइंट कि आप कैसे अपना इसका स्ट्रक्चर बना रहे हो, कि आप खा रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप मेडिसिन को मेडिसिन बोलने के बजाय आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको विटामिन बोल सकते हो, आप कुछ भी और बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दवाई खा ली, ठीक है। सो व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स यू आर अफर्मिंग और यू आर चेंजिंग द बिलीफ कि प्रिया दीदी हमारे रेखी में से संजीवनी बोल के हम लोग मेडिसिन वेरी को नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप संजीवनी बोल के कर सकते हो, यस, जैसे संजीवनी बूटी थी हनुमान जी वाली ना, दैट वन, यस, हाँ या वंडरफुल, ठीक है। तो आप वैसे ही करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा करते कि देखते हैं कि आज कौन चुपचाप खाना खा सकता है, जैसे बच्चों के संग ऐसे चैलेंज किए जाते हैं ना, अगर आपको लगता है कि आपके किड्स है वो ये नहीं सुनेंगे, जो चुपचाप खाना खाएगा उसको लास्ट में एक मिठाई मिलेगी। यू कैन मेक योर ओन गेम्स लाइक दिस सो दैट यू एनकरेज द किड्स कि आज टीवी नहीं देखना है, आज फोन नहीं देखना है, ठीक है, एंड आपको चुपचाप खाना है, या आप कुछ अच्छी बातें करके खाना खाओ, या खाने में क्या अच्छा है वो बात करके खाओ। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर थिंकिंग पॉजिटिव, व्हेन वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, दैट इज द टाइम वी आर स्टार्टिंग द हीलिंग प्रोसेस इन आवर बॉडी। और अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो क्या होगा, ये हेल्थ हमेशा हमेशा रहेगी आपके पास। ओके, लेट्स सी। When having your eyesight checked or blood pressure checked, or if you are having a general checkup, receiving results from tests or anything concerning your health, it is very important that you are feeling good during it and while receiving the result in order to receive a good outcome. By the law of attraction, the outcome of the checkup or test must match the frequency you are on. So, to bring the good outcome you want, you must be on the frequency to receive it. Life does not happen the other way around. The outcome of every situation in your life will always match your frequency. Oh. Because that is the law of attraction. To get yourself onto a good feeling frequency about a test, imagine the outcome you want and feel that you have already received that outcome. Every possible outcome can happen, but you must be on the good feeling frequency to receive good outcomes. या तो जो मैजिक बुक कर चुके हैं आपको समझ में आ गया होगा वो किस प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, डे 21 का मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस, ठीक है। और जिन्होंने नहीं की है मैजिक बुक, वो आप ऐसा समझ लो कि कोई भी रिपोर्ट अगर हमारी होती है, ठीक है, उसमें जनरली अपन क्या करो, तो अपन टेंशन करो, वो पता नहीं क्या आएगा, ब्लड शुगर क्या आएगी, या हेमोग्लोबिन क्या आएगा, या क्या आएगा रिपोर्ट में, वी आर जनरली टेंस्ड। तो उस समय क्या किया हमने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स दी, हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी में है वैसी टाइप की रिपोर्ट आएगी, यस। तो हमको क्या करना है, शी इज टेलिंग अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फीलिंग गुड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड वाइल रिसीविंग द रिजल्ट्स। माने जब आपका ब्लड टेस्ट या जो भी कोई टेस्ट हो रहा है उस समय भी आपको खुश रहना है। कैसे खुश रहोगे? अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट हो रहा हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस हॉस्पिटल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस नीडल, फॉर दिस इंजेक्शन, माने फॉर दिस चेयर दैट आई एम सिटिंग ऑन, फॉर माई ब्रदर हु टुक मी टू द हॉस्पिटल, या जो भी आप जैसे भी गए हो, आपको पूरा टाइम मन में आपके ग्रैटिट्यूड चलते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, व्हेन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, आपके मन से ये नेगेटिव फीलिंग्स भाग जाएंगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी देयर साइमल्टेनियसली एंड दिस विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। शी इज टेलिंग अस रिपोर्ट के पहले भी आपको क्या रिजल्ट चाहिए उसके बारे में आपको अभी से सोच के थैंक यू करना है, ठीक है। वाओ, माई ब्लड शुगर इज नॉर्मल, आई विल जस्ट सेलिब्रेट एंड गो एंड हैव अ आइसक्रीम, आप ऐसे सोच सकते हो। और आप उस आइसक्रीम के मन में टेस्ट इमेजिन करो कि वाओ चॉकलेट आइसक्रीम माय फेवरेट आइसक्रीम, जैसे ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मैं वहाँ चली जाऊँगी, यू नो, जो वट एवर योर रिपोर्ट। तो हमको वैसे सोच के ग्रेटफुल होना है, और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर कि वैसा ही रिपोर्ट आए, ओके। बिकॉज वो कह रही कुछ भी हो सकता है, बट हम जिसको फीलिंग देंगे, हम जिस फ्रीक्वेंसी पे होंगे, वो ही हमको वापस मिलेगा, ओके। एंड आई एम श्योर कई जन ने ये प्रैक्टिस किया हुआ है, आई हैव ऑल्सो डन इट एंड इट इज 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है, ओके। तो आप भी ऐसा करो एंड यू विल ऑल्सो सी दीज रिजल्ट्स। या मैम एक क्वेश्चन है कि बिगिनिंग में इतना पॉजिटिव सोच के नहीं आता, ठीक है, वी ट्राइड इट, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हाउ टू हैंडल दैट? कोई बात नहीं, देखिए जो भी रिजल्ट आएगा, अगेन मैग्निफिसेंट आउटकम में यही कहता कि अगर आप अपना फीलिंग्स दे रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट 100%, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही होएगा। देखिए आपने ऐसा सुना होगा ना, कई जन बोलते हैं चोट लगने पे बोलते हैं अच्छा हुआ इतनी सी चोट लगी,
है ना, और हमको लगता है हमको चोट लग गई और ये बोला अच्छा हुआ इतनी सी चोट लगी, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि उससे ज़्यादा भी तो चोट लगती है दुनिया में, है ना। दे आर पीपल जिनको छोटी सी खरोच नहीं आती, उनको बहुत बड़ा कट हो जाता है, उनको स्टिचेस भी लगाने पड़ते हैं, राइट। जिनको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, अगर उनको बोला जाए कि चलो थोड़े से ही स्टिचेस लगे हैं, तो आप बोले स्टिचेस लग गए, तो आप सोचो उससे भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं लोगों ने। तो हमको यही सोचना है कि ये जो मेरे लिए हुआ है ये बहुत बच गए हम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फील। अगर हो भी जाता है नेगेटिव, तो वी शुड ऑलवेज फील कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा तो इतने से ही काम हो गया, है ना, है ना। तो इट्स लाइक अब देखो ना, रोड पे सब टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, है ना। आप बच गए जस्ट, या थोड़ा सा खरोच आया, दैट इज अ ब्लेसिंग। तो हमको ऐसे सोचना है। सी कई जन इसको बोलेंगे कि ऐसा सोचने से कैसे होएगा, ये तो हमने क्या किया, हमने अपने आंखें बंद कर ली। नो, दिस इज द ओनली वे, बिकॉज अभी तक तो आप जैसे जीते थे वैसे जी रहे थे, उससे लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं क्या? नहीं हो रही है। लेट्स ट्राई इट फॉर 30 डेज। या आप ऑलरेडी 20-21 डेज से बुक में हैं। डोंट यू फील यू आर स्टार्टेड, यू आर फीलिंग अ लिटिल बेटर? कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी इफ़ यू आर फॉलोइंग व्हाट द बुक इज टेलिंग, इफ़ यू आर डूइंग यू नो दीज प्रैक्टिसेस इन द सेंस लाइक यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन पॉजिटिविटी, तो आपको दिख रहा होगा वो डिफरेंस। अगर आप वो वैसे ही कर रहे हो तो आपके लाइफ में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे। ओके, इफ़ यू आर गिविंग दोज 3 नोट्स, हमने आपको पिछले मंथ बोला था, मेरा जो मंथली टारगेट सोचा था वो हो गया। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट एवरी डे, बट वेन एवर आई डू दैट विद ग्रैटिट्यूड। जब मनी आ रहा है मेरे हाथ में, आई एम इन फुल पॉजिटिविटी। व्हेन आई एम गिविंग द पेमेंट्स, देन ऑल्सो आई एम इन फुल पॉजिटिविटी। इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, आपका रिजल्ट 100% आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जैसे करोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। और हम ये भी होता है, हमको पता नहीं कि हमने पहले कितने मेरे छेद बाकी हैं, पहले के कितने मेरे नेगेटिव फीलिंग्स की चीज़ें हम अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, उनको भी तो नेगेट करना होता है। सो इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टेड इन द जर्नी, आप सही ट्रैक पे हो, बस आप करते जाओ, ओके। I have a question. हाँ, Please, yes. if you can answer it. Yeah, My yeah. younger son is 10 years old. Okay. Hmm. So, like before 10 days, he heard from her teacher that if you write something in your diary every night, you'll get it. Hmm. So he always sees me also doing all this, so he has become quite positive in that field. So what happened? वो उसने लिखा कि he wrote about I got a yellow T-shirt. So like after the period he has given of 10 days, it passed. Then he said, "Mama, it has not come." I said, "Okay, you keep on writing. You keep on writing, you'll get it." So now again he said, "So in what way should I? No, what I should tell?" You have to say when the time is right, you will get it. You have to have that belief. Okay. Okay. If you remember, have you seen the Secret movie? Yes. या उसमें यू रिमेम्बर द बाइसाइकिल इंसिडेंट, वो बच्चा को बाइसाइकिल चाहिए है, हाँ, वो क्या करता है, उसको लगता है नहीं मिली, वो ऐसे पेपर करके फेंक देता है। देन ही रिमेम्बर्स नहीं आए तो लव माय बाइसाइकिल, ही टेक्स इट आउट अगेन, लुक्स एट इट, फिर उसको मिल जाती है। सो ऑल दिस विल हैपन, वी हैव टू कीप हैविंग दैट फेथ। फेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फेथ एंड दैट डिजायर, ये 2 चीजें ही हैं जो हमको जो भी चाहिए वो हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर सकती है। दे आर द ड्राइविंग थिंग। आज बेला जी ने तो शेयर किया था ना शाहरुख खान का, कि कैसे लोग रिलैक्स होके रह सकते हैं। आई एम जेलस ऑफ देम। मतलब क्या है, हमारे वो डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ दैट। ओके, लेकिन ही इज अ चाइल्ड ना, तो वही कि उसको क्या बोल के कन्विंस करे, दैट इज व्हाट आई यही वाज बोलिए आस्किंग। कि इट विल कम टू यू। जैसे क्रिसमस के टाइम पे आप क्या समझाते हो बच्चों को? आपकी येलो टी शर्ट, ठीक है, ओके, yeah, you have to be good, then only Santa will give it to you, you know. तुमको क्या चाहिए, आज तुमने क्या अच्छा किया, नहीं किया, yeah, so it is that only. अच्छा, yeah, and same applies to us. हम सोचते हैं कि आज मैंने gratitude किया है, कल ही मुझे पराठा मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, we have to keep on doing that gratitude, and whenever the time is right, when my faith is, हमने पढ़ा ना, हमको उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड इन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा, and it is about all our dreams. When I'm telling you, I'm also telling myself कि वो आपकी ड्रीम क्यों नहीं सच हो रही, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा देर रह ही नहीं रहे। हम उस फ्रीक्वेंसी पे बहुत अपने उस फेथ में बहुत सारा मिक्सचर मिला दे रहे हैं, ऑफ विश्वास नहीं है, उसका मिक्सचर मिला दे रहे हैं, इसलिए वो ड्रीम नहीं मिल रही हमको। ओके, सो वी हैव टू हैव दैट फेथ एंड वी हैव टू स्टे इन द पॉजिटिविटी। ओके, थैंक यू। यस, और आपको विजुअलाइज भी करना है। उसको बोलिए कैसी येलो टी शर्ट चाहिए, कौन सा कलर, इतने सारे येलो हैं, तुमने ठीक से सोचा ही नहीं होगा,
राइट? कॉलर की चाहिए, बिना कॉलर की चाहिए, प्रिंट की चाहिए, नहीं चाहिए, तुमने अच्छे से सोचा, यू तो नो दिस नाउ, यू कैन आस्क हिम, ठीक है? बोले और अच्छे से सोचो कैसी चाहिए। ओके, या यस, Possibilities and miracle mean the same thing. मैम वो ऑथर का नाम नहीं बहुत प्यारा। हाँ, प्रेंटिस मलफर्ड। ओके, संभावना और चमत्कार एक ही चीज है, माने कि जो हमको लगता है कि हो सकता है और चमत्कार, वो दोनों ही जब तक लेकिन हम उसके बारे में अपने मन में पॉसिबिलिटी ही नहीं बनाएंगे, ठीक है? माने पहले हमको अपने मन में उसकी पॉसिबिलिटी बनाना है कि यस माय बॉडी इज दिस एंड आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, जो भी इज लाइक जो भी आपका है, और यू वांट अबाउट मनी, वो जब हम अपने मन में पॉसिबिलिटी बनाएंगे तभी वो मिरेकल होता है। आप देखो ना, कई साल पहले क्या लोग सोच सकते थे कि हम और आप ऐसे आमने सामने देख के अपने अपने घर में बैठ के कंफर्टेबल सेशन कर रहे होंगे? नहीं। उस समय तो हमको वो चमत्कार ही लगता। कोई हमको बोलता ना कि आज हम लोग सब लोग 100 जन पूरी दुनिया में एक दूसरे को देख देख के ऐसे बातें करके सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, हाँ, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, हाँ, और लगता कि अरे वाह ऐसा हो सकता है, इट वुड हैव बीन अ मिरेकल। बट आप देखो किसी ने ऐसा सोचा और वो हो गया। सो सेम वे वट एवर वी थिंक, अरे तो चमत्कार ही होगा कि अगर वो अपने पैरों पे चलने लगा। आपको सीक्रेट मूवी का अगेन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ दैट गाय जिसका प्लेन क्रैश होता है, उसकी एंड ही कुड ओनली ब्लिंक हिज आईज, या एंड उसने अपने मन में वो फेथ रखा कि आई विल वॉक आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल बाय क्रिसमस। सिर्फ उसके मन में ये था थॉट, वो किसी को बोल भी नहीं पाया होगा जब उसके एक्सीडेंट हुआ था। ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड ओनली ब्लिंक हिज आईज एंड ही वॉकड आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल। लोगों को तो मिरेकल ही लगा था, बट उसने अपने मन में ये पॉसिबिलिटी सोची थी, इसलिए वो हो गया। तो शी इज प्रेंटिस मलफर्ड इज टेलिंग अस पॉसिबिलिटी एंड मिरेकल मीन द सेम थिंग। जब वो हो जाता है राइट, तो हमको लगता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन एक्चुअल में किसी ने उसकी पॉसिबिलिटी को सोचा था। यस, Imagine and feel having the health you want in your body. If you want to restore your eyesight, give love for perfect vision and imagine having it. Give love for perfect hearing and imagine having it. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it. And be utterly grateful for everything you do have. Your body will change into whatever you want, but it can only do it through feelings of love and gratitude. या वो कह रहे हैं कि हमको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। हम अभी बैठ के ये सोच रहे हैं कि अरे मेरे को तो पता नहीं कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मेरी हेल्थ में ऐसा चैलेंजेस चल रहा है, मेरे नी में ये इशू है, मैं तो रनिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। हम पूरा टाइम ये सोच रहे हैं, इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं कि मेरी नीज फिट हो गई हैं और हम मैराथन में दौड़ रहे हैं, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी बॉडी को पता कैसे चलेगा मेरे को चाहिए क्या? तो हमको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। हम लोगों ने पूरा चैप्टर आगे पढ़ा हुआ था ना, लाइक वो आई एम जस्ट अगेन आगे एक चैप्टर पढ़ा था ना, पूरा इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन के ऊपर था। तो शी इज़ टेलिंग अस इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। माने अगर हमको अपनी आईसाइट अच्छी चाहिए तो हमको इमेजिन करना है कि मेरी आईसाइट अच्छी है, और आराम से ऐसा मत बोलेगा कि बिना चश्मे के पढ़ रहे थे तो आपने क्या ऐड कर दिया उसमें चश्मा, एकदम भी नहीं। आप हेल्दीली बुक्स पढ़ रहे हो, नॉर्मली परफेक्ट आईसाइट है आपकी, वो सोचना है हमको। अगर आप चाहते हो कि आपकी हियरिंग अच्छी हो जाए तो आप सोचो कि आपको तो ना एक तो बजिंग बी की भी, दूर से बजिंग बी की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है, वो आप इमेजिन करो। आपको परफेक्ट वेट चाहिए तो शी इज टेलिंग अस गिव लव फॉर द परफेक्ट वेट। इमेजिन तो करना ही है। गिव लव कैसे कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, आई लव दिस बॉडी ऑफ इतना केजी या इतना वेस्ट या जो भी आपको बोलना है, ठीक है। परफेक्ट हेल्थ ऑफ एन ऑर्गन, तो उन्होंने बोला उसका पहले क्लियर पिक्चर हमारे पास होना चाहिए एंड यू आर गिविंग लव टू इट, यू सेइंग वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्दी ऑर्गन ऑफ माइंड, वो बोलना है आपको। शी इज टेलिंग अस योर बॉडी विल चेंज इनटू व्हाटएवर यू वांट। माने आपने देखा है ना वो वाली पिक्चर भी जिसमें ऋषि कपूर रहता है और उसकी वाइफ रहती है, उसकी ऐसे छोटी रहती है, नसीब अपना अपना, हाँ रिमेंबर दैट मूवी, हाँ, कैसे उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। और यू रिमेंबर दैट खून भरी मांग मूवी जिसमें रेखा कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। योर बॉडी विल लिसन एंड रिएक्ट टू वट एवर यू आर टेलिंग, बट हमको उसको वो लव एंड ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। अभी रिसेंट में मेरे को मूवीज ऐसी कोई ध्यान नहीं, सारी पहले की मूवी ध्यान। रिसेंट में भी कोई है ऐसी मूवी जिसमें ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? अभी तो सारी गर्ल्स पहले से ही ट्रांसफॉर्म रहती हैं या पहले से ही फिट रहती हैं, सॉरी, हाँ। तो आप देखो हमारी एक्चुअल में बॉडी ऐसी हो जाती है। आप खुद भी सोचो, आप
हो सकता है, विद योर वर्कआउट, विद योर डेडिकेशन। और अभी है ना सारा अली खान लाइव एग्जाम्पल है ना, या उसका नाम क्या है, अदनान सामी, ऑल ऑफ देम हैव ट्रांसफॉर्म्ड, फॉर दैट मैटर करण जौहर ऑल्सो। वो सब कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, कैसे हो गए? उन्होंने बिल्कुल ये सारी चीज़ें की होंगी। अब बोलोगे नहीं नहीं उसने तो ये पे किया होगा, उस डाइटिशियन के पास गई होगी, जो भी किया होगा वो यूनिवर्स ने उसके सामने ला के रखा, तभी वो जाके कर पाए। देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टिल कैन नॉट डू। इवन सोनम कपूर, वो पहले कैसी थी एंड मूवीज में आने के टाइम पे कैसी हो गए। सो पीपल ट्रांसफॉर्म बिकॉज दे गिव लव टू देयर बॉडी, दे आर ग्रेटफुल फॉर देयर सिस्टम्स। Okay, so you can also do this. Yeah. When a young fit woman was told she had a rare heart disease, her life crumbled around her. She suddenly felt weak and fragile. Her future, a normal, healthy life, had disappeared with a prognosis. She was terrified of leaving her two young daughters motherless. But this woman decided she was going to do everything she could to heal her heart. या तो क्या हुआ She एक लेडी को, या जस्ट वन सेकेंड, एक रेयर हार्ट डिजीज थी, और जब उसने उसका आउटकम सोचने लगा, देखिए उसने क्या किया, वो जो अभी तक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीती थी, हाँ, सडनली उसको लगने लगा कि नाउ आई एम वीक एंड फ्रेजाइल, मेरा तो पता नहीं क्या होगा, मेरी तो नॉर्मल लाइफ ही चली गई लाइफ से। वो टेरिफाइड हो गई ऑफ लीविंग अ टू डॉटर्स मदरलेस, माने उसने अपनी डेथ सोच ली, राइट, वर्स्ट आउटकम सोच लिया उसने। फिर उसने सोचा नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने हार्ट को खुद हील करूंगी, ओके, एंड आई विल डू एवरीथिंग। तो लेट्स रीड व्हाट शी डिड। She refused to entertain any negative thoughts about her heart. She placed her right hand on her heart every day and imagined her strong, healthy heart. Every morning when she woke, she gave the deepest thanks for her strong, healthy heart. She imagined the cardiologist telling her that she was cured. She did this thing every day for 4 months, and when her cardiologist checked her heart for 4 months later, they were dumbfounded. They checked and rechecked the old test again and the new test because the new test showed that the woman's heart was perfectly strong and healthy. या तो अब देखिए क्या किया उस लेडी ने, कैसे उसने अपना हार्ट ठीक कर लिया 4 मंथ्स में, है ना। एंड डॉक्टर्स लोग डबल चेक कर रहे हैं कि अरे वो रिपोर्ट सही थी कि नहीं, ये रिपोर्ट सही है कि नहीं, दे वर डबल चेकिंग। एंड व्हाट डिड शी डू, आप बताओ कौन सी प्रैक्टिस की उसने? ग्रैटिट्यूड, लव, ग्रैटिट्यूड तो की है, बट राइट हैंड ऑन हर हार्ट कौन सी प्रैक्टिस थी? सबका मैजिक सेशन दोबारा लेना चाहिए, हार्ट मैजिक, लव भेजा हार्ट को, लव, यस हार्ट मैजिक किया उसने। आपको भी यही करना है, ठीक है। और क्या किया उसने? शी इज एवरी मॉर्निंग व्हेन शी वॉक शी गेव द डीपेस्ट थैंक्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी हार्ट। माने सुबह जो आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो उसमें भी वो अपनी ड्रीम लिख रही है ना। फ्यूचर में जो उसका हार्ट हेल्दी हो रहा है उसके लिए वो अभी से ग्रैटिट्यूड कर रही है, राइट। और वो मॉर्निंग में अपनी ड्रीम लिख रही है, राइट। इट इज राइटिंग अ ड्रीम्स। वो अपने हार्ट के लिए तो ग्रेटफुल है ही। नेक्स्ट व्हाट इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट शी डिड वाज शी रिफ्यूज टू एंटरटेन एनी नेगेटिव थॉट्स अबाउट हर हार्ट, है ना। वो क्या कर रही है? सिर्फ अपने हार्ट के बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रही है। वो विजुलाइज कर रही है कि कार्डियोलॉजिस्ट उसको क्या कह रहे हैं, और वो ये सेम चीज़ 4 महीने तक करती रही। हम लोग नॉर्मली क्या होएगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 महीने से कर रहे हैं कुछ तो हो नहीं रहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई खाने लगते हैं। 1 महीने से कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो, कुछ नए पंडित जी के पास जाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, बट व्हाट डिड शी डू? अब लोग नहीं, बाहर में ना ये पंडित का ऑप्शन नहीं होता, हमारे इंडिया में ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं, जब तक विश्वास नहीं होता है ना तब तक हर जगह कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो कितने अच्छे से उसने अपना हार्ट ठीक कर लिया। और आप सोचो ना, आप देखो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी 9 मंथ्स में आई थिंक एक बेबी बन जाता है। तो वैसे ही ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर हमारी भी पूरी बॉडी के एक सेल न्यू हो जाते हैं, आपको पता है ना। एक सेल न्यू हो जाता है बॉडी का। तो आप बोलोगे कि अरे हर दिन में, माने देयर इज अ थिंग कि एक लिवर इतने महीने में न्यू हो जाता है, माने उसकी एक सेल न्यू हो जाती है। हमारी स्किन थोड़े दिनों में न्यू हो जाती है, ठीक है। और हमारा ब्रेन या हार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट वो भी पूरा 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट पूरा न्यू हो जाता है। तो फिर हमारी जो सेम डिजीजेस हैं या जो सेम ब्रेकडाउन हैं वो कंटिन्यू क्यों रहते हैं? आपने सोचा कभी ऐसा कि क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसको सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
क्या कि ये मेरे स्टमक में जो एसिडिटी है, तो मेरा स्टमक में खाना जा रहा है, हर दिन जो हम खाना खा रहे हैं उससे न्यू सेल्स बन रहे हैं, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि स्टमक में एसिडिटी। इसीलिए जब आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो आपको न्यू इंस्ट्रक्शन दे के उस खाने को अपने बॉडी में डालना है। हमारी बॉडी तो वही है जो हमने छोटे से अभी तक खाते जा रहे हैं। इट इज़ दैट ओनली, इट इज़ मेड ऑफ दैट। आपने जो खाना खाया, जो पानी पिया, योर बॉडी इज़ मेड ऑफ दैट। बट उसको इंस्ट्रक्शन जो मिल रहा है वो उसी के हिसाब से एक्ट कर रही है। ओके, सो वेन एवर यू आर ईटिंग, ड्रिंकिंग और थिंकिंग, हमेशा आपको जो चाहिए आपको वो करना है। आई एम टेलिंग यू, आई यूज टू इमेजिन कि मैं शीर्षासन कर रही हूँ, बिकॉज शीर्षासन उस समय मुझे मना कर दिया था डॉक्टर ने करने के लिए ना, कि नहीं करना चाहिए, इससे हेड में ब्लड ज़्यादा हो जाता है, समथिंग, कॉफ़ी नहीं पीना है। आई वॉज इमेजिनिंग दैट आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी एवरी डे, मैं शीर्षासन कर रही हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, एंड एकदम नॉर्मल है। तो आपको वैसे ही सोचना है, वही इंस्ट्रक्शन आपको बॉडी में आपको देना है जो आपको चाहिए, एंड बॉडी वैसे ही फंक्शन करने लगेगी। ओके, वो एक एक सेल वैसे ही फंक्शन करने लगेगी। या एंड शी हैज गिवन अस मोर टिप्स। आपको विजुअलाइज करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको पूरे टाइम उस पार्ट के लिए पॉजिटिव बातें ही करनी है। या यस, This woman lived according to love's law of attraction. She did not own the prognosis of diseased heart in her mind, but she gave love for a healthy heart, and she owned a healthy heart instead. If you are facing any kind of illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Don't hate an illness either, because that is giving negativity to it. Instead, give love to health, own health, and make it yours. या तो रॉन्डापन कहते हैं कि दिस वुमन लिव अकॉर्डिंग टू लव्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे किया उन्होंने हमको बताया कि वो अपने हार्ट को रोज लव देती थी, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करती थी, उसको विजुअलाइज करती थी, ठीक है, और अपने हार्ट के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज शी डिड नॉट ओन द प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज्ड हार्ट इन हर माइंड। मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरा दिल तो खराब है, ये नहीं बोला उन्होंने, माने उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। इससे हमको एक चीज़ समझनी है कि नेवर एवर से दैट आई हैव फीवर, आई हैव डायबिटीज़, आई एम डायबिटिक। ओके, इस टाइप की कोई आई हैव लो प्रेशर, व्हेन आप कब बोलते हो आई हैव लॉन्ग हेयर, व्हेन यू ओन इट, तब आप बोलते हो, है ना। आई हैव 2 eyes, आई हैव 1 phone, आई हैव 1 car। आप कब बोलते हो? जब आपकी चीज़ वो होती है ना, मतलब आप उसको ओन करते हो, आप उसके क्या हो, हकदार हो। हिंदी में ओनर को क्या बोलते हैं? यस, मालिक हो। यस, आप, थैंक यू रेणु जी, आप उसके मालिक हो। तो वो यही कह रहे हैं, जब भी हमारे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आता है, हमको उसको ओन नहीं करना है। आपको क्या बोलना है? आप बोलो, आप पूछोगे ना फिर क्या बोलेंगे? वो राइट द मोमेंट आई एम हैविंग सिम्टम्स ऑफ दिस, ठीक है, उस चीज़ के सिम्टम आए हैं तो सिम्टम चले जाएंगे। अगर आपने यही बोल दिया कि मेरा लिवर ही ऐसा है, मेरा स्टमक ही ऐसा है, माने आपने उस चीज़ को ओन कर लिया। जिस चीज़ को आप ओन कर लोगे वो आपके पास ही रहेगी। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड आपको कैसे बोलना है। सो फॉर योर ब्रेक डाउन यू हैव टू थिंक क्या करना है। या तो शी इज टेलिंग अस, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इलनेस, डू योर बेस्ट नॉट टू ओन इट विद योर थॉट्स एंड वर्ड्स। माने सिर्फ मन में नहीं, कोई आपसे पूछता भी है ना, तो भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है, दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट डिजीज। या डोंट हेट एन इलनेस आइदर। माने अगर आपने किसी और को देखा, हाँ, तो आपको अरे लूज मोशन तो बहुत ही खराब चीज़ है, ठीक है, मन नेवर ओन इट, माने सॉरी नेवर हेट इट, वो भी नहीं बोलना है। क्योंकि क्या हुआ, आपने उसको इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दी तो क्या होएगा, पक्का वो आपके पास आ जाएगी, बिकॉज दैट इज गिविंग नेगेटिविटी टू इट। उसका मतलब आप उसका और कुछ भी बोलो, इंस्टेड गिव लव टू हेल्थ, ओन हेल्थ एंड मेक इट योर्स। माने जो हमको चाहिए सिर्फ आपको उसी के बारे में बात करनी है। ओके, इफ यू वांट अ गुड फिजिक, यू वांट अ गुड हार्ट, गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, गुड आई साइट, गुड हियरिंग, गुड हेयर, गुड स्किन, सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है। व्हाट यू वांट, जो नहीं चाहिए उसको हम देखते ही नहीं है। या लेट्स कंटिन्यू। Keep your mind as much as you can from dwelling on your ailment. Think of strength and power, and you will draw it to you. Think of health, and you get it. Prentice Mulford, New Thought author. या तो वो कह रहे हैं, दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे। माने हमको जो चाहिए
जो हेल्दी ऑर्गन चाहिए, जो हेल्दी पार्ट चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है हमको। अगर आपको लगता है कि नो वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमको जो चाहिए, आप स्ट्रांग हो जाओगे तो आप क्या करोगे, वो चीज़ के बारे में जब आप सोचोगे, उसमें जब आप इमोशन दोगे, तब आप उसको पालोगे, तब आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, या तो अगेन वन मोर थिंग, कभी भी ऐसा कुछ ब्रेकडाउन हो, आपको गूगल नहीं करना है, ठीक है। गूगल करने का मतलब क्या हुआ, आपका मन उसी चीज में लगा हुआ है। शी इज टेलिंग अस ना, कीप योर माइंड एज मच एज यू कैन फ्रॉम ड्वेलिंग ऑन योर एलिमेंट। माने हमको अपने दिमाग में वो बातें नहीं लानी है। जब आप गूगल कर रहे होते हो तो क्या आपके पास एक टाइमर लगा होता है कि बस 5 मिनट देखेंगे, हाँ फिर बंद कर देंगे? नहीं, हम लोग एक के बाद देखते ही जाते हैं कि इसका सिम्टम क्या है, अच्छा ऐसा होने से ऐसा होएगा, ऐसा होने से ऐसा होएगा, इसकी मेडिसिन क्या है, इसका ये सॉल्यूशन क्या है, हम लोग वो ही देखते हैं, उसी में अटक जाते हैं। सो वी आर नॉट टू डू दैट। या लेट्स रीड। Every moment you feel love for your health. The force of love is eliminating any negativity in your body. If you find it difficult to feel good about your health, all that matters is that you feel love for anything. So surround yourself with everything you love and use those things to feel as good as you can. Use everything you can in the outside world so that you feel love. Watch movies that make you laugh and feel good, not movies that make you feel tense or sad. Listen to music that makes you feel good. Get people to tell you jokes that makes you laugh, or have them tell you funny stories about their most embarrassing moments. You know the thing you love, you know the things you love, you know your favorite things, you know what makes you happy. So draw on them all and feel as good as you can. Use the creation process. Use the keys to power. Remember, it only takes giving love and good feeling a minimum of 51% of the time to reach the tipping point and change everything. या तो रोंडा बन अब हमसे क्या कह रही हैं कि कुछ भी हो, हमको हर समय अपने बॉडी के लिए लव फील करना है, ठीक है। क्योंकि वो जितना ज़्यादा हम लव देंगे, जितना ज़्यादा अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बॉडी से नेगेटिविटी निकलती जाएगी। अब ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सारी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? बॉडी के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है ना, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। ये प्रोटीन क्या होता है? हम लोग सोचते हैं जो हमारे डीएनए में है वैसा ही प्रोटीन बनता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सेल का जैसा एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट किससे बनता है? हमारे थॉट से, हमारी फीलिंग से वो वाटर में असर आता है और उसी हिसाब का उस सेल को एनवायरनमेंट मिलता है, और उसी लिए उस सेल का प्रोटीन डिफरेंट टाइप का होता है। आपने देखा है कि एक ही घर में 2-3 बच्चे हैं, अगर सब लोग सेम टाइप का खाना खाते हैं, कोई जन पतला हो जाता है, कोई जन मोटा हो जाता है, कोई जन वीक होता है, कोई जन स्ट्रांग हो जाता है, किसी जन के कुछ ब्रेकडाउन हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं, जबकि सेम ही खाना सब जन खा रहे होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स उस टाइप की होती हैं। वो सेम लंच करते टाइम ऑफिस में किसी ने कुछ डांट सुनी या किसी को डांटा तो उसके बॉडी में वो डिफरेंटली असर करेगा। एक जन जो घर पे बैठ के भगवान जी का प्रोग्राम देख के या कुछ भजन सुन के खाना खा रहा है, उसके बॉडी में वो डिफरेंटली वर्क करेगा। तो जैसा सेल को एनवायरनमेंट मिलता है, सेल को एनवायरनमेंट कौन देता है? हम दे रहे होते हैं। कैसे? अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने थॉट से, माने हर चीज़ से हम अपने बॉडी में सेल्स को वो एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं। एवरीथिंग इज फूड फॉर अस, राइट। आप आंखों से जो देख रहे हो वो भी खाना है, जो आप कानों से सुन रहे हो वो भी खाना है। वो हर चीज़ आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। वो जो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही है वैसे ही सेल्स बिहेव करती हैं और वैसा ही प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारी बॉडी उसी टाइप की बनती है। ओके, आपने ये भी सुना होगा कि ट्विन्स हैं, एक मोटा एक पतला है। ट्विन्स हैं, एक की तबीयत गड़बड़ है, एक की तबीयत ठीक है। ट्विन्स हैं, एक की बहुत जल्दी लाइफ एंड हो गई, एक आगे तक जी रहा है। क्यों होता है ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने सेल्स को कैसा एनवायरनमेंट दिया है। तो वो कह रही हैं वो एनवायरनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय बीइंग पॉजिटिव, बाय थिंकिंग ऑफ थिंग्स यू लव, बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विद एवरीथिंग यू लव। अगर आपके हेल्थ में ऐसा कुछ चैलेंज है जो आप ठीक करना चाहते हो, तो उसमें आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, तो पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको
उसको ओन नहीं करना है, हमको उसको पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, मार्क इट फॉर योर सेल्फ कि जब भी छोटा से में भी आप ट्राई करोगे, यू विल सी द रिजल्ट्स एंड देन यू विल यूज इट फॉर मोर। या आपको पॉजिटिविटी में रहना है, कपिल शर्मा देखना है, हेरा फेरी टाइप की मूवीज देखनी है, जब वी मेट टाइप की देखनी है, माने ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको खुश कर रही हैं, हंसा रही हैं। या आपने सीक्रेट मूवी में एक और एग्जाम्पल था कि उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, पूरा दिन उसने सिर्फ कॉमेडी मूवी देखी, घर के सारे लोग सिर्फ कॉमेडी मूवी देखते थे और उसका कैंसर ठीक हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये? बिकॉज शी डिड नॉट ओन इट, बिकॉज शी केप्ट हर सेल्फ इन पॉजिटिविटी, और वो खुश रहती थी। तो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस, शी इज टेलिंग यू नो द थिंग्स यू लव। हमने पिछले चैप्टर्स में प्रैक्टिस किए ना कि थिंक ऑफ थिंग्स यू लव, दैट वॉज अ प्रैक्टिस। यू नो योर फेवरेट थिंग्स, आपको पता है आपकी फेवरेट थिंग्स? डिड यू राइट डाउन दिस इज वॉट यू लव, दिस इज वॉट आई लव टू ईट, लव टू ड्रेस, दिस इज माई फेवरेट कलर, उसको आप मन में याद रखिए। शी इज टेलिंग अस यू नो वॉट मेक्स यू हैप्पी। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो पहले ये पता करिए, तब तो आप उसको यूज कर पाओगे। शी इज टेलिंग अस यू ड्रॉ ऑन देम सो दैट यू फील गुड, माने जब तक आप उनको सोच सोच के खुश होगे, हैप्पी फील करोगे, तभी तो आप उसको यूज कर पाओगे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। Okay, she is telling us use the creation process, imagine it, feel it, receive it. You use the keys to power, power of क्या था, की ऑफ लव, की ऑफ ग्रैटिट्यूड, की ऑफ प्ले, इन सबको यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पॉजिटिव रह के अपने आप की, अब कोई भी हेल्थ का ब्रेकडाउन हो उसको आप ठीक कर सकते हो। ओके, सो आर यू रेडी टू डू इट? Yes. या वेरी नाइस। या लेट्स कंटिन्यू। Want to help somebody who is ill, you can use the creation process and imagine and feel full health being restored to them. Although you cannot override what another person is giving to the law of attraction, your power can help them rise to the frequency where they can receive help. क्या कितने बार होता है, हम तो अपनी हेल्थ के बारे में हमने समझ लिया, अपनी हेल्थ हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे क्लोज लोग होते हैं, उनको अगर हम ब्रेकडाउन में देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता था, है ना। अब वो कह रही है वहाँ पे भी हम क्रिएशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इमेजिन करेंगे कि वो पर्सन फुल्ली हेल्दी, हेल एंड हार्टी है, और वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है आपके पास, आपसे कुछ बात करने आया, आप लोग कोई हॉलीडे पे गए हो, आपको वो इमेजिन करना है और ऐसे इमेजिन करना है कि उसकी पूरी तबीयत ठीक हो गई है। ठीक है, नहीं तो जो आप मैजिक प्रैक्टिसेस कर चुके हो, मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली शी इज टेलिंग अस इम्पॉर्टेंट क्या है, वो जो फील करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसके हेल्थ में, जो गुड हेल्थ या बैड हेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जब उस पर्सन से मिलें, यू नो इफ आई सी समवन इन ब्रेक डाउन स्टेट, उसके लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं हेल्थ में, और हम जाए ओ गॉड अब कैसी तुम्हारी लाइफ होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, अब इसका क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और नेगेटिविटी दे रहे हैं। बट क्योंकि अब हम सबको ये पता है कि जो लो है उसको हमको दूसरी फ्रीक्वेंसी पे लेके आना है। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे हम उसके संग अच्छी बातें करेंगे, हम उसको जोक सुनाएंगे, हम उसके संग कॉमेडी की बातें करेंगे। आई विल शेयर माई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स विद दैट पर्सन। की पता है क्या हुआ, सेशन में गए थे, लोगों के नाम ही भूल जा रहे हैं, यू नो सेशन कर रहे हैं और लोगों के नाम ही नहीं याद आते एग्जाम्पल के। तो इफ आई एम शेयरिंग माई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स विद दैट पर्सन, उसको हंसी आएगी ना, वो खुश होगा। तो शी इज टेलिंग अस जब हम उसको उस समय उस फ्रीक्वेंसी में लेके आते हैं या कोशिश करते हैं कि वो इस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहे, तो उस समय तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ के आ रहा है, तो उसके लाइफ में थोड़ी तो हेल्थ आएगी आएगी। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो कोई और भी अगर वहाँ पे रोना धोना कर रहा है ना, उसको वहाँ से दूर कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके पास हमेशा पॉजिटिव बातें हैं, कॉमेडी की चीज़ें, यू नो नाइस थिंग्स, उसकी फेवरेट थिंग्स, अच्छी चीज़ें जो उसको अच्छी लगती हैं वो चीज़ों से उसको सराउंड करें। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Beauty comes from love. As love grows in you, beauty grows too. For love is the beauty of the soul. Saint Augustine of Hippo, theologian and bishop. या तो अब अगर हम सबको ब्यूटी चाहिए है, या तो रॉन्डावन नॉट ऑफ द ब्यूटी एंड द बीस्ट आर ब्यूटी, तो रॉन्डावन कह रही है वो भी लव से ही आने वाली है। कैसे? जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। आपने वो देखा होगा जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो वो लोग अरे ऐसा लगता है ग्लो आ रहा है अंदर से, हाँ देखा आपने, या न्यू क्रश होता है, सो दे आर ऑलवेज ग्लोइंग, दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अंदर से पूरा टाइम पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, दे आर इन लव,
दे मशी मशी क्यूट सी फीलिंग्स उनको पूरे टाइम आने, देर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर लव्ड वन, कब मिलेंगे, कब देखेंगे, यू नो कब डिनर पे जाएंगे, डेट पे जाएंगे. सो दे आर इन द पॉजिटिव जोन एंड इट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस ऑल्सो. इट आप स्माइल करते हो ज़्यादा, आपके चेहरे पे वो ग्लो आ जाता है. मैंने वो ऐड भी सुना, इसी पे बनाया ना, इज इट लव, इज इट डव, राइट, इज इट लव, वो जो ऐड है वो भी इसी पे ही है. तो शी इज़ टेलिंग अस, शी इज़ नॉट टेलिंग कि वो लव एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए ही होगा या फियांसे या फियांसी के लिए ही होगा. शी इज़ टेलिंग अस एज लव ग्रोज इन यू, ब्यूटी ग्रोज टू. किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपके कोई पैशन के लिए, आपके कोई स्पोर्ट्स के लिए, आपके कोई अपने पेरेंट्स के लिए, लाइफ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी लव बढ़ता है ऑटोमेटिक चेहरे पे वो ग्लो आ ही जाता है. बिकॉज लव इज़ द ब्यूटी ऑफ द सोल. ठीक है, क्योंकि लव आत्मा से ही आता है. और आपने देखा फीलिंग्स में लव सबसे ऊपर है. All beauty comes from the force of love. Unlimited beauty is available to you through love. But the problem is that most people find fault and criticize their body more than they appreciate it. Looking at your fault and being unhappy about anything about your body does not bring beauty to you. All it brings is more fault and more unhappiness. या तो कह रही ऑल ब्यूटी कम्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ लव. माने जो भी आपको चाहिए, आपको जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए, पिंक लिप्स चाहिए, शाइनी हेयर चाहिए, सब कुछ किससे आता है? हम अपने बॉडी के बारे में जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव बोलेंगे, वहीं से आता है. अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, शी इज टेलिंग अस द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल, मोस्ट नहीं, मेरे को तो लगता है मैक्सिमम पीपल क्या है, दे आर ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट एंड क्रिटिसाइज देयर बॉडी मोर देन दे अप्रिशिएट इट. माने अगेन यहाँ पे वो हमको टिपिंग पॉइंट याद दिला रही है कि हम अक्सर अपने बॉडी के बारे में फॉल्ट गिन रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप्रिसिएशन. तो आप देखो कि आप ऐसा कर रहे हो कि आप मिरर में देख के क्या बोलते हो, ओहो ये आईब्रो कैसी हो गई, हाँ ये नोज़ कैसी है, यू नो ये स्किन कैसी हो रही है, हेयर ग्रे हो रहे हैं. आप क्या ये देखते हो मिरर में देख के? हाँ, अरे ये फ्लैब यहाँ पे कैसे आ गया, मेरी जीन्स टाइट हो गई, यू नो आप इस तरीके की बातें कर रहे हो कि स्किन ड्राई हो गई. आर यू डूइंग दिस? देन यू आर डेफिनेटली यू नो स्पीकिंग मोर अबाउट द नेगेटिव्स. तो हमको वो नहीं करना है. व्हाट इज शी टेलिंग अस? लुकिंग एट योर फॉल्ट्स एंड बीइंग अनहैप्पी. क्या कर रहा है हमारे बॉडी के बारे में? आप अपने सेल्स को अगेन वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, है ना, वो सेम नेगेटिव फीलिंग्स फिर से दे रहे हो, और उससे क्या होगा, और ज़्यादा चीज़ें आने लगेंगी. All it brings is more faults and more unhappiness. तो आपको क्या करना है? Let's read. The beauty business is enormous, yet unlimited beauty is being poured down to you in every second. But you have to give love to receive it. The happier you are, the more beautiful you will be. Lines will fade, skin will tighten and begin to glow, hair will become thicker and stronger, eyes will begin to sparkle and their color will intensify, and more than anything else you will see the proof that beauty comes from love when people are drawn to you wherever you go. या तो वो कह रही है ब्यूटी बिजनेस इज एनॉर्मस. माने आप देखो ना, हर चीज़ के लिए कोई तो भी एक क्रीम, कोई तो भी एक लोशन, सीरम, सब दुनिया में मिल रहे हैं. ठीक है, वो किस लिए है? क्योंकि आपको लगता है आपके में कुछ फॉल्ट है, उसको ठीक करने के लिए ब्यूटी बिजनेस बढ़ता ही चला जा रहा है. बट वो क्या कह रही है? येट अनलिमिटेड ब्यूटी इज बीइंग पोर्ड डाउन टू यू इन एवरी सेकेंड. कैसे आ रहा है? हर सेकेंड हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स बन रहे हैं. ठीक है, वो जब सेल्स बनते हैं वो फ्रेश, न्यू, हेल्दी होते हैं अगर हम उनको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं. या बट यू हैव टू गिव लव टू रिसीव इट. वो जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, अगर हम उनको पॉजिटिविटी, लव, अच्छी फीलिंग्स देंगे, तभी वो न्यू सेल्स अच्छी हेल्दी चीज़ें करेंगे हमारे बॉडी में. ओके, बिकॉज हमने बात की ना कि जब हम उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो बॉडी में वैसा ही काम करेंगी वो सेल्स. सो व्हेन यू आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, यू नो टचिंग वाटर, आपको यही बोलना है जो आपको चाहिए. शी इज टेलिंग अस द हैप्पियर यू आर द मोर ब्यूटीफुल यू विल बी. जितना ज़्यादा आप दिल से चीज़ों के, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी सेल्स अच्छे से वर्क करेंगी. उसका एनवायरनमेंट वैसा होगा तो वो वैसा ही काम करेंगे बॉडी के अंदर. या लाइन्स विल फेड, स्किन विल टाइटन. माने जो चाहिए, है ना, आपको क्लियर स्किन चाहिए, आपको इवन टोन स्किन चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. आपको ये नहीं बोलना है मेरा पिगमेंटेशन चला गया, मेरे डार्क सर्कल चले जाएं. नहीं, आपको क्या चाहिए है, आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए. शी इज टेलिंग अस वट एवर वी वॉन्ट वो पॉसिबल है. ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस मोर देन एनीथिंग एल्स
आप हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, है ना। दैट इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द लव दैट यू आर नो एमिटिंग फ्रॉम योर बॉडी। आपकी ऑरा वैसी होने लगी दैट मोर एंड मोर पीपल आर ड्रॉन टू यू बिकॉज लव कम्स फ्रॉम द सोल। यस, शुड वी रीड वन मोर टॉपिक? इट इज ऑफ 2 pages। बोलिए, और शुड वी डू इट टुमारो? जैसा बोलो आप लोग, आई एम कूल। सी एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग ऑन द 16th, तो उस दिन तो नहीं हो पाएगा सेशन। आई हैड थॉट उसके पहले कंप्लीट कर लें, हाँ, बट आई थिंक लेट्स सी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। यस पल्लवी जी, लेट्स रीड। You really are as old as you feel. Ancient texts say that people once lived for hundreds and hundreds of years. Some lived for 800 years. Some lived for 5 or 600 years. But longevity was commonplace. So what's happened? People changed what they believed. Instead of believing in living for hundreds and hundreds of years, people changed their beliefs over generations, and they came to believe in reduced life expectancy. तो आपने ये सुना होगा ना, एज इज जस्ट अ नंबर। आपने सुना है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। एक्चुअली इट इज। आप आज की डेट में आप मलाइका अरोरा को बोलोगे एज इज जस्ट अ नंबर ओनली, कोई नहीं बोलेगा कि उसकी जो एज है उसका इतना बड़ा एक बेटा है ना, कोई नहीं बोलेगा। एज इज जस्ट अ नंबर। लुक एट अमिताभ बच्चन, लुक एट सम ऑफ दी स्पोर्ट्स पर्सन, वो कितने फिट हैं अभी तक, वो अपने आप को वैसा ही यंग एंड हेल्दी सोचते हैं। अभी आप बताओ, आप अपने आप को कौन सी एज का सोचते हो? अभी पहले ना, थोड़े सेशंस पहले तक हम अपने आप को 25 सोचते थे, अब हम 30 के हो गए हैं, ठीक है। दैट इज द न्यू एज दैट आई हैव एक्सेप्टेड एज माइन। आप देखो, आपने अपनी कौन सी एज सोच के रखी हुई है? क्या आप एक्चुअल में ऐसे हो? अच्छा, आपको एक और भी बात पता है कि देयर इज अ न्यू वे, न्यू टेक्नोलॉजी, वो ऐसे टेस्ट करके बताता है कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का एक्चुअल एज क्या है। एक्चुअल एज मतलब आपने अपने बॉडी को कितना लव दिया है, कितना हेल्दी चीज खिलाया है, तो आपकी बॉडी में भी 25 ईयर्स की होगी, ठीक है। आप 25 ईयर्स इस दुनिया पे आए हुए होंगे। मेरा भी 29 के बाद रुक गया है प्रिया जी। वेरी गुड। हाँ, या वेरी नाइस। आपकी बॉडी शायद 25 की होगी, लेकिन आप टेस्ट करके पता चलेगा कि मे बी आपने अपने ऑर्गन्स को इतना अब्यूज किया है कि वो 25 की जगह 30 के हैं, या आपने उनको इतना प्यार देके रखा है कि वो आपकी बॉडी है 25 ईयर्स की, लेकिन आपके ऑर्गन्स की एज जस्ट 20 ईयर्स है। तो इट इज एक्चुअली दैट नाउ पीपल आर टेस्टिंग दिस। हाँ, उससे उनको पता चलता है कि इस ऑर्गन को और प्यार देना है, इस ऑर्गन की और टेक केयर करना है, तो आपको ऐसा करना है, राइट। अब आपको पता चल गया उसकी सीक्रेट क्या है। आपको अपने हर ऑर्गन को उतना ही प्यार देना है। व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर, व्हेन यू आर अप्लाइंग लोशंस और मॉइस्चराइजर, आपको एक एक बॉडी पार्ट को अपना उतना ही ग्रैटिट्यूड एंड लव देना है। नेक्स्ट आप देखिए, रोंडा बर्न कह रही है एंशिएंट टेक्स्ट बोलते थे कि कई लोग 700-800 साल तक जिंदा रहते थे। हमको लगता है ये हमारे स्क्रिप्चर से ही आया हुआ कि ऋषि मुनि इतने इतने साल के थे, हजारों साल उन्होंने तपस्या की। आपने पढ़ा ये सब अपने वेद पुराण में। 100 साल तक उसने तपस्या की, तब जाके उसको भगवान जी ने एक आशीर्वाद दिया, राइट। तो ये एक्चुअल में ऐसे ही होता था। तो क्यों अब वो रुक गया? ठीक है, क्योंकि पहले लोगों के लिए इतनी लाइफ स्पैन रहना बहुत कॉमन था, बट कभी किसी ने अपना ऐसा वाला लाइफस्टाइल चेंज किया होगा और उसकी जल्दी लाइफ चली गई होगी, तो लोगों का बिलीफ चेंज होने लगा। जैसे लोगों की बिलीफ चेंज हुई एज फॉर द द लाइफ स्पैन की कितने साल उनको जिंदा रहना था, वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती गई। ओके, सो लेट्स रीड। We have inherited those beliefs of reduced life expectancy. From the time we are born, the belief of how long we can live has been sewn into the fabric of our minds and our hearts. And from there, we literally program our bodies from an early age to live for a certain amount of time, and our bodies age according to how we program them. क्या तो वो कह रही बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने अपने घर में देखा होगा कि हाँ दादी नानी की एज ये थी, इतने साल में उनको मेनोपॉज हुआ था, तो आप वैसे ही सोचने लगे होगे और आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करने लगती है। ठीक है, तो वो हमने बिलीफ्स इनहेरिट कर ली। बिलीफ माने क्या हुआ? वो थॉट। इतने बार लोगों ने बोला कि हमने उसको विश्वास कर लिया और हमारी बॉडी में जैसा बिलीफ होता है वैसी ही बॉडी हमारी रिएक्ट करती है।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमने लाइफ के बारे में सोचा था, अरे मेरी नानी तो ना 75 ईयर्स की थी, मेरी नानी तो 95 ईयर्स की थी, अगर आप ऐसा सोच के रहोगे तो हाँ इतना साल हम भी जिएंगे, तो आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करने लगती है, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा हम इस पे विश्वास करते हैं, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस, एंड हमने अपने एज में अपने दिमाग में वैसा ही सेट कर लिया है कि हाँ 75 तक लाइफ तो ठीक है, 85 तक तो ना क्या जीना क्या करना, ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो वैसा ही होएगा। ये कुछ साल पहले तक की बिलीफ थी। अब आप देखिए आजकल तो लोग 50-60 में अब इंजॉय करना शुरू करते हैं, पार्टी भी कर रहे हैं तो 70-80 तक कर ही रहे हैं। तो आप देखो धीरे धीरे अगेन माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो आप देखिए आप अपना कैसा माइंडसेट बना रहे हैं। पहले ही ना तो सटिया गए, पहले हम लोग बोलते थे, आजकल 60-70 सो कूल। हाँ, रिमेंबर कैसे चेंज होता जा रहा है अगेन। तो हमको अपना बिलीफ और माइंडसेट चेंज करना है, एंड आवर बॉडी विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। आपको कोई बोले कि नहीं इतने साल के हो गए, एकदम ही नहीं, आई एम तो यंग एट हार्ट, आई एम एज ओल्ड एज आई फील, है ना। तो बिल्कुल यही है, आप अपनी एज डिसाइड करोगे कि आपकी एज क्या है और आप वैसे ही जियोगे। ओके, एकदम भी नहीं बोला यार ये 40 हो गया तो अब तो चश्मा लगेगा ही। आप बिलीफ ऐसा बनाओगे तो होगा ही, या अरे इतनी एज हो गई अब तो मेनोपॉज हो गई, एकदम भी नहीं। आप देखिए ना, लोग के बेबीज आजकल लोग सरोगेसी से कर रहे हैं, पहले कहाँ कोई सोचता था, राइट। बट इट इज हैपनिंग, everyone is changing their mindset because सबको पता चल गया है कि this is just one life that we have। अगर हम दूसरी यही सब चीज़ों में सोचते रहेंगे then when will I enjoy life? या सो आप सोचो, और जब तक हमारी बॉडी फिट नहीं है how will you enjoy life? तो सबसे पहले हमको अपने बॉडी को फिट, फाइन एंड हेल्दी करना है। वी हैव टू चेंज आवर बिलीफ सिस्टम्स, वी हैव टू गिव मोर लव, मोर ग्रैटिट्यूड, एंड आवर बॉडी विल डेफिनेटली 100% बी फिट एंड फाइन। ओके, लेट्स रीड। There is nothing in biology yet found that indicates the inevitability of death. This suggests to me that it is not at all inevitable and that it is only a matter of time before biologists discover what it is that is causing us the trouble. मैम वो नाम ऊपर जा रहा, रिचर्ड फेनमैन, नोबेल प्राइज विनिंग क्वांटम फिजिक्स। या अब ये कह रहे हैं जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई जिससे ये संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य मतलब निश्चित है। इससे मुझे लगता है कि ये कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। वो कह रहे हैं साइंस में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कहता है दैट वी शुड डाई। बताओ, साइंस बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है दैट वी शुड डाई। वो बोल रहे हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, वो साइंटिस्ट लोग ढूंढ ही लेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोगों की डेथ होती है, कि उनकी लाइफ एंड होती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम ही उनके पास उनका सोल्यूशन निकलेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। If you possibly can, don't put a ceiling on how long you can live. All it will take is one person to break the limits of life expectancy, and that person will change the course of life expectancy for all humanity. One person after another will follow, because when one person lives far beyond the current life expectancy, other people will believe and feel they can do it too, and they will. या तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही हमने देखा कि अरे अमिताभ बच्चन तो 100 के एज में भी क्या मस्त रोल कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है, तो आप देखोगे दूसरे एक्टर्स भी उसी तरीके से उनके भी रोल बनने लगेंगे, उनके लिए भी वैसा ही होने लगेगा। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि एक जन को ये सीलिंग को तोड़ता है, ठीक है। सीलिंग मतलब जो हम लोगों ने ऐसा मन में अपना एक तो लिमिट बना के रखी हुई है, ठीक है, तो उसके बाद कई लोग वैसा ही करने लगते हैं। या अब जैसे एक जन ने अगर सरोगेसी से बेबी किया तो अब देखो कितने सारे जन कर रहे हैं, है ना। अब उनको एकदम कूल लगता है, उनको कुछ ऐसा टैबू नहीं लगता है दैट दे आर टेकिंग दैट डिसीजन कि आई वांट टू स्टे फिट, फाइन एंड हेल्दी लाइक दिस एंड आई वांट टू हैव अ बेबी ऑल्सो। तो कई जन ऐसा करने लगते हैं। वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी यही होगा। तो वो कह रहे हैं इफ़ यू पॉसिबली कैन, हमको सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरी एज तो 80 तक रहेगी, 90 तक रहेगी। हमको खुद अपने उसमें एज लिमिट नहीं सोचना चाहिए। ओके, बिकॉज हमारी बॉडी जो सुन रही है, जो मेरे थॉट हैं, जो सेल्स मेरी बात सुन रही हैं, वो वैसे ही रिएक्ट करेंगी। तो अपने हेल्थ के बारे में आप जो बोल रहे हो आज से आपको ध्यान देना है।
आप मिरर में जाके यही बोलना है कि आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल बॉडी। और आपको हर बार यही बोलना है और आपको दिखेगा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग दैट एंड शी इज एक्चुअली टेलिंग दैट कि एक बार किसी ने सोचा कि हाँ मैं 105, 120 फिट, फाइन एंड हेल्दी हूँ, तो बाकी लोग भी वैसा ही सोचने लगेंगे और ये सारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की चीज़ें वो और ज़्यादा इंप्रूव होने लगेंगी। या When you believe and feel that aging and deterioration are inevitable, then they will happen. Your cells, your organs, and your body receive your beliefs and feelings. Feel young and stop feeling your age. Feeling your age is just belief you have been given and a program you have given to your body. You can change the command you are giving whenever you want by changing what you believe. या तो अगर आप अभी तक भी अपने बॉडी के बारे में कुछ भी बोलते हो तो आप अभी से ही चेंज कर दो, आप अब से ही न्यू इंस्ट्रक्शन देने लगो और बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी बिहेव करने लगेगी। पहले अपन कितने सारे जन प्लास्टिक को माइक्रोवेव में रखते थे, नहीं पता था हमको, लेकिन जब पता चला तो आपने स्टॉप कर दिया होगा ना। अब आप ग्लास वेयर ही रखते होगे, या कितने जन तो शायद माइक्रोवेव बंद ही कर दिए हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि अभी तक अपन जो सोचते थे, अगर हमको आज एक न्यू चीज़ पता चल गई है विच इज़ हेल्थियर एंड बेटर, हम उसको फॉलो करने लगेंगे, राइट। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और आपको यही सोचना है कि आपकी जो भी एज है आप उससे अपने आप को यंग ही फील करो एंड योर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग एंड एक्टिंग लाइक दैट। ओके, तो अगर आपको लगता है आपको 40 अच्छी लग रही है आप वो सोच लो, आपको 30 अच्छी लग रही है आप वो सोच लो। एंड जब भी आप मन में सोचो तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट मत लाइएगा, ठीक है। मैं तो 25 फील कर रही हूँ लेकिन चश्मा शायद आ जाए, एकदम भी ऐसा बातें नहीं लानी है आपको मन में। ओके, सो यू हैव टू फील 25 इज यंग, अभी तो मैं जवान हूँ, लाइक वट एवर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फीलिंग younger and your body will start responding like that. Yes. How do you change your beliefs? By giving love. Negative beliefs such as beliefs of limitation, aging, or disease do not come from love. When you give love, when you feel good, love melts away any negativity, including negative beliefs that harm you. तो कैसे हम अपना बिलीफ चेंज करेंगे? अब बाय गिविंग लव। कैसे आप लव दोगे कि अगर आपने किसी से सुना, यू वर्ड ऑफ दैट फीमेल जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और उसके नीज या लेग्स में कुछ चैलेंज था, लेग्स नहीं थे, एंड आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, बिजेंद्री पाल नहीं समवन, हाँ। तो क्यों उसने किया? क्योंकि उसको वो लव था कि शी वांटेड टू क्लाइम दैट माउंट एवरेस्ट। तो लोग सोचते थे कि तो चल नहीं पाती, माउंट एवरेस्ट कैसे जाएगी, बट वो गई। आपने नाचे मयूरी में सुधा चंद्रन का भी एग्जाम्पल देखा होगा, उसका एक पैर नहीं था, फिर भी उसने डांस का, उसके लिए जो प्यार था उसने उसको किया। व्हेन यू गो अब्रॉड, आपने देखा होगा एल्डरली लोग हैं, क्रचेस पे है, व्हीलचेयर में, बट फिर भी वो ट्रैवल करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने लिए कोई लिमिट नहीं बांधती कि मैं ये नहीं कर सकता। तो शी इज टेलिंग अस, जब भी हम अपने लिए ये बाउंड्री बना लेते हैं कि मेरी बॉडी एबल नहीं है, मेरी अब एज नहीं है, मेरे घुटने मेरा साथ नहीं देते हैं, अब मेरी बैक में दर्द होने लगा है, अब तो मेरे से हाथ नहीं उठते, मेरे शोल्डर फ्रीज हो गए या क्या क्या। अगर आप ऐसी खुद अपने बॉडी के लिए ऐसी बाउंड्री बना लेते हो तो आप क्या अपनी बॉडी को लव कर रहे हो? क्या आप उसको पॉजिटिविटी दे रहे हो? आप नहीं दे रहे हो। तो शी इज टेलिंग अस, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग लव योर बॉडी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। वो एक लेडी थी, पता नहीं कितने साल की थी, और उसको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया था बिकॉज वो कोई रेस पे फर्स्ट आई थी। या आपने देखा इतने सारे ये जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वो जोश है कि दे कैन डू एवरीथिंग। तो सब चीज़ दुनिया में पॉसिबल है इफ़ वी स्टार्ट गिविंग लव टू आवरसेल्फ। ओके, और वो चेंज कैसे करना है जो हमारी नेगेटिव बिलीव्स हैं? जस्ट बाय गिविंग लव एंड स्टेइंग इन पॉजिटिविटी। ओके, लेट्स रीड। The love that gushes for all is the real elixir of life, the foundation of bodily longevity. It is the lack of this that always produces the feeling of age. Joseph Gilbert Holland, author. वो कह रहे हैं सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है, इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। माने लव जब हमारे अंदर है, माने हर चीज़ के लिए,
सॉरी, वो ही रियल अमृत है हमारी बॉडी को फिट, फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए. ओके, सो इफ वी आर गिविंग लव टू इट, इफ वी आर गिविंग लव टू एवरीवन, इफ वी आर थिंकिंग, टॉकिंग, जैसे बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन बोलता है आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. तो जब आप वैसे ही लव एमिट करोगे अपने बॉडी से, अपने लिए, दूसरों के लिए, वो हमारे लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा देगा. और यू नो उसका क्या उन्होंने बोला, इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है. व्हेन लव इज नॉट देयर ओनली देन वी स्टार्ट. ऐसे आपने देखा होगा ना कि हार्ट ब्रेक हो जाता है और मूवीज में दिखा रहे हैं कि सडनली अब एकदम चला नहीं जा रहा है, हिला नहीं जा रहा है, आप बेड पे बैठ गए हो. इट इज़ दैट कि जब आप सैड फील कर रहे होते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली वैसे ही रिएक्ट करने लगती है. ओके, सो विल स्टॉप हियर. प्लीज़ रीड दिस वंडरफुल चैप्टर अगेन. अपने लिए एक एज सोचिए कि आपकी एज क्या है और उसको ही अपने मन में सेट रखिए. ठीक है, और वैसे ही आपकी बॉडी बिहेव करने लगेगी. या सो थैंक यू पल्लवी जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस. सो वील डू ग्रैटिट्यूड नाउ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और शेयरिंग्स वील टेक दैट. या सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड लेट्स बी ग्रेटफुल. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan Ji for this miraculous body that you have given to us. Thank you for the love, the passion, the joy that we all have for life. Thank you for the smiles and happiness that are always there on our faces. Thank you for our wonderful organs inside and out that are always working and giving us a healthy life. Thank you for their support and love and our love and support to them. Thank you. Yes, thank you everyone. Thank you so much for being here. Yeah. मैम मेरा शेयरिंग है. हाँ, यस पल्लवी जी बोलिए. मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी नर्मदा परिक्रमा को गई थी. हाँ. उसने वहां से मुझे फोटोज भेजे थे. वहां पे कोई बर्फानी बाबा करके शी मेट एंड ही इज 185 years old. और उनका अगर आप फोटो देखेंगे ना, यू वोंट बिलीव इट. हाँ, I'll send it. It's a truth. Please, It's a बिल्कुल. truth. It's a truth. I'll share it if I get the photo. And she was also shocked. हाँ. But वो है ना, वो बहुत spiritual practice में. That person is completely in spiritual practices. So I'll share it. Yeah, please, awesome. बिल्कुल यही होता है, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी में रहेंगे ना, वो एक्चुअली वो दिखता ही है. राइट, थैंक यू. एकदम शेयर करिएगा. या यस, एनीवन एल्स? और एंड थैंक यू कि आप अभी तक हो सेशन में. या प्रिया जी, थैंक यू सो मच, नाइस एक्सप्लेनेशन. मैं सैटरडे संडे ही आपका अटेंड कर पाती हूँ, बाकी यूट्यूब से देखती हूँ. तो जैसे आप बोल रहे हो कि मैं 16 को ट्रैवल करूँगी, उसके पहले कंप्लीट करूँगी. तो मैं, जैसे आपने एक बार बीच में बोला था ना कि ग्रेटेस्ट सीक्रेट भी बहुत अच्छी मूवी है, ये सॉरी बुक है. तो आप इसको नेक्स्ट आप कराएंगे? सपना जी, ग्रेटेस्ट सीक्रेट ना एकदम बहुत थोड़ी ऐसी बुक है ना कि उसको मेरे को 2-3 बार करना पड़ेगा तब हम बता पाएंगे. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट कि अब आपने सब कुछ कर लिया है दुनिया में. ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू कनेक्ट टू योर सुप्रीम पावर. इट इज़ अबाउट दैट. द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इज दैट. ओके, तो उसको समझने के लिए अभी ना मेरे को बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा लगता है चैलेंजिंग है. मेरे को इससे क्यों मिल रहा है कि मेरे को एटलीस्ट एक बार दोबारा पढ़ लेनी चाहिए. मैंने बस 1 या 2 बार ही उसको पढ़ा है और उसको इतना डीप में नहीं किया है. लेट मी सी. या और फिर क्या होता है, देखिए ऐसी बुक्स में ना सब लोगों को वो नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है. तो सबको ऐसी बुक्स करनी होती है जिसमें प्रैक्टिसेस हैं. आप देखिए पावर बुक इतनी अमेजिंग बुक है, लेकिन आप देखिए आज आप लोग कितने जन हैं. तो मैजिक बुक में जिसमें तुरंत रिजल्ट दिखते हैं, सबको वैसा ही अच्छा लगता है. क्या होता है, थोड़े लोग आते हैं तो मेरे को भी लगता है कि हम जो अपना टाइम सबके संग शेयर कर रहे हैं, आपकी कुछ शेयरिंग्स आए तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेटिंग लगता है. ओके, सो लेट्स सी. हो सकता है, आई विल नेवर से नो. क्या पता कब करें. आई विल नॉट कमिट कि नेक्स्ट बुक वही करेंगे, बट या पावर बुक तो मैंने पहले अंजू सचदेव के साथ भी की थी. उन्होंने भी बहुत अच्छी कराई, लेकिन आपका भी बहुत अच्छा. जब भी करो ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है. बिल्कुल. तो इसका ग्रेटेस्ट सीक्रेट का भी पहले भी किसी ने बताया था और बाकी अश्विन मैम ने कराई थी. तो मैं वही सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है डीप. तो इसलिए उस दिन आपने बात करी तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं. सीक्रेट में एक्चुअल में यही. अब जैसे रॉन्डा बन में जो बुक्स लिखी है ना, उन्होंने ऐसी ही लिखी है. फिर पावर, फिर अभी खाना खाया, 10 मिनट रुको. फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने लिखी हीरो.
हीरो में क्या है कि आपने सब कुछ अचीव किया है, उसके बाद आपको उससे हटना भी होता है. इट इज़ लाइक हीरो बुक में ये लिखा है कि आपने सीखा, अचीव किया, आप दूसरों को सिखाओ एंड यू स्टेप डाउन. ठीक है, तब आप हीरो बनते हो. ग्रेटेस्ट सीक्रेट में क्या है, इट इज़ लाइक पूरे टाइम आपको अवेयर करा रही है कि देर इज समथिंग इनसाइड यू. वी ऑल नो इट इज़ आवर सोल, बट हम लोग उससे जो कनेक्ट ही नहीं हुए हैं. तो ग्रेटेस्ट सीक्रेट इज ऑल अबाउट दैट. मैम खुद भी बोलते थे कि उसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है, आपको भी कई बातें ऐसी लगेंगी कि आपने गीता में, अपने वेद पुराणों में, कथाओं में ये सारी बातें सुन चुकी है आपने, या बहुत सारी बातें उसमें सुन चुकी हैं. तो वो बुक पूरी उसी के ऊपर है. और अभी स्पिरिचुअल टाइप की. एग्जैक्टली स्पिरिचुअल टाइप की बुक है. ओके, और वो एक बार पढ़ने में समझ में तो आई नहीं थी, ऐसी थी वो. अपने आप पढ़ने में से तो एकदम ही नहीं आ रही थी. ओके, तो ऐसी हो गया है. बट थैंक्स टू आश्मीन मैम एंड ये सारे सेशंस आपके संग. अब क्या होता है, कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, तो उसको खुद ही ऑटोमेटिक 1-2 बार पढ़ते हैं तो डिफरेंट बातें समझ में आने लगी. अब जो पहले नहीं आती थी अब समझ में आने लगी हैं. बट फिर भी उसको अभी हम ट्राई भी नहीं कर रहे. अभी उसकी पहले बहुत सारी बुक्स चल रही हैं. ओके, नहीं, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा आया कि उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं. ओके, थैंक यू. बट मेरे को एक्चुअल में उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, मेरे को लगता है, तभी हम ट्राई भी करेंगे. नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. या कभी भी आओ. या थैंक यू सपना जी. थैंक यू सो मच. या ओके, सो थैंक यू. एंड में देख के उससे ना, मिरर की प्रैक्टिस से 2 चीज़ें होती हैं. एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ठीक है, आपका अपने लिए ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन बढ़ता है. आपके रिलेशंस अच्छे होंगे उससे, और आपके हेल्थ में भी चेंजेस आएंगे. ओके, सो इफ़ यू आर वॉकिंग और डूइंग सम वर्कआउट, तो भी आप अपने बारे में पूरे टाइम यही बोलो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई नीज, फॉर माई लेग्स, फॉर माई बैक. पूरे टाइम आप यही बोलते रहो. मिरर में देख के भी जितने बार आप ये बोलोगे उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, एंड खाना और पानी के टाइम तो आपको करना ही है. या सो थैंक यू एंड लव यू ऑल. सी यू ऑल टुमारो. Thank you. Bye bye. Thank you, Priya ji. Thank you so much.